Hi friends, let's start from the introduction of data compression. So data compression is a representation of a file in fewest number of bits and as accurate as possible. So here we have a source file of some size, let it be 15 KB. So in data compression we compress this file in a new file such that the size of this file is minimum. Okay, so here we will compress it by some compression algorithm. Okay, so for example the size of this file is 5 KB. Okay, and when we decompress this file we should got the original file of 15 KB. So let's name this file as compressed file and this is decompressed file. Okay, so data compression is a representation of this source file in the fewest number of bits. So suppose that this is the fewest number of bits possible from this 15 KB. Okay, and this with some error. Okay, so all the time we don't get the decompressed file as accurate as this source file. Okay, sometime we will get the decompressed file as equivalent to the source file, but sometime we will not get that. Okay, so according to this we have two types of data compression. So let's see the types of data compression. So it has two types, lossless and lossy. Okay, so in lossless the decompressed file is exactly equivalent to the source file. That is decompressed file, for example it is 15 KB and source file is 15 KB. But in lossy the decompressed file is not equivalent to the source file. It is as similar as possible but is not exactly equivalent to source file. Suppose the source file is 15 KB and this is 14.8 or 14.9 KB. Okay, and then next is this lossless is slow, because in this we will get the decompressed file. We will compress the source file in such a way that the decompressed file will be exactly equivalent to the source file, hence this procedure will somehow slow. And this is fast because it involves some error, so it is false. Fast. Okay, and then this is mostly used for text files and this is mostly used for videos and audios, etc. Because in text files the error should be minimized, or there should not be error, because suppose we compress a file that is he is a boy, and when we compress this in some file and then again we decompress it and we got that H is a boy. Okay, H is a boy means here is a loss of information, that is E is not present in the decompressed file. So here the meaning of this source file and decompressed file will be very much different. Okay, but in videos or audios, suppose the videos bit are 1010, because all the videos and audios are in bits, and if we have loss of this 1 bit or this 0 bit, then our ears or eyes cannot distinguish between this. Okay, so this does not make any much difference. Okay, and the other things are here. Example will be run length, Huffman
we will see all this in upcoming classes. Third one is LZ, and here the example will be MPEG, MP3, etc. So these are mostly used for text files, and these are, we all know that these are used for audio and videos. Okay, so it's all about the introduction and types of data compression. So let's start with the modeling and coding. So let's see what is model. Okay, our target is to compress a file. Okay, so suppose we have a source file as here 1 1 1 2 2 2 2 3 3 like that. Okay, so we have to compress this file, okay, in fewer number of bits. So suppose we take this compression technique as 1 3 2 4 and 3 2. We will take this one here and the number of ones, that is 3, 2 here and the number of 2's 4, 3 here and the number of 3's 2. Okay, so let's assume that we will when we compress this input file we will get this. Okay, so here we will use a model that so the techniques behind compression is involve the model. That is the model behind this compression technique is, when we compress this input file of some integers, then what we will do is we first take a first number, and then the second will be the number of this number, that is 3 ones, that is 3, and then we will take 2 and the number of 2's, the total number of 2's available, that is 4. Okay, so this method is called as model. Okay, so to devise any compression technique, we will first need some model to find that how we will going to compress the file, and then involve coding, and the next step will be to code this compression. We will use any of codes, that is let's use the unary code, that is here 1 0 and 3 will be coded as 1 1 1 0, 2 will be coded as 1 1 0, 4 will be 1 1 1 1 0, 3 will be 1 1 1 0, and 2 will be 1 1 0. This is called as unary code. We will see this in upcoming classes. Okay, so these are the models and these are the codes. Okay, so modeling and coding will involve in every compression techniques. Okay, so next we will see the performance of the compression techniques. Next is performance measure. In this we will see that how a single compression technique is better than some other technique. Okay, so there are some criteria regarding this. So first will be compression ratio. So compression ratio is defined as bits required before compression
to the bits required after compression. So this is a source file and this is a compressed file. Okay, suppose our source file is of 4 bits, and when we compress this, then we will get compressed file of 1 bit. Okay, so the compression ratio will be the bits required before compression, that is bits in source file, upon bits required after compression, that is bits in compressed file. That will be 4 divided by 1 is equal to 4. So if the compression ratio of a compression technique or compression algorithm is higher, then it is a better algorithm. Okay, so let's see that here C1 is a compression algorithm and C2 is another compression algorithm. Okay, and if the compression ratio of this is higher and compression ratio of this second algorithm is lower, then this will be better than this. Okay, this is not better. So this compression algorithm C1 will be better than this compression algorithm. Okay, so this is the first criteria of the performance measure. And some other criteria are space, that is space required by the algorithm, time, that is time to run the algorithm, and implementation, that is implementation complexity, that is it is difficult to code or this is easy to code. So and the first one is compression ratio. So all these are performance measure of the compressing algorithm. Okay, so thank you friends. Hi friends, in this video we will see the various terms in the information theory. So let's first see what is the use of information theory. So this information theory is used in the development of the lossless compression techniques. This is used in development of lossless compression techniques. Okay, so in this we will see two terms. The first one is self information and the second one is entropy. Okay, so before we go to self information, let's familiar with some terms. Okay, so first is experiment. So what is experiment? The experiment is any procedure or trial that we can do infinite number of times and have some set of outcomes. Let's see an example. Suppose rolling a dice. So rolling a dice is a procedure or a trial, and we of course roll a dice any number of times, so that we can do infinite number of times and have some set of outcomes. So what are the outcomes of rolling a dice? That is on the top it could be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Okay, so this is the experiment, and the set of all outcomes is called as sample space.
set of all outcomes is equal to, that is called as sample space. So here in this experiment, rolling a dice, the 1 2 3 4 5 6 is a sample space. Okay, so this is the first term. The next term is random experiment. So random experiment is any experiment which has more than one outcome. So for example, rolling a dice or tossing a coin, etc. So here the outcome can be 1 or 2 or 3 or 5 or 4 or 5 or 6, depending randomly. The outcome can be randomly, and here the toss will be head or tail. So we don't know what will be the outcome. It can be head or it can be tail. So the outcome will be random, so the experiment is random. And the third one is an event. So an event is a set of outcomes. Okay, so suppose for example we want to know the probability of getting more than 3 in rolling a dice. Okay, so here the outcome may be 4 or 5 or 6. Okay, so the event is set of outcomes. So all outcomes may be 1 2 to 6, and here the outcome will be 4 5 6. So this example, that is getting more than 3 in rolling a dice, will be an event. Okay, so these terms are required to understand the self information. Okay, so let's start with the self information. So first let's take an example. Okay, so here suppose that today is Saturday. Let's suppose today is Saturday, and here is a sender that sends a message to a receiver. Sends a message to the receiver. The message is tomorrow is Sunday. Okay, so here we can see that the receiver already know that tomorrow is Sunday. Okay, so here the information contained in this message is 0. Okay, we know that this is message, but information in this message is 0. Okay, because receiver already know that tomorrow is Sunday. Okay, so this is the information contained in this message is called as self information. Okay, so suppose another message that there will be rain tomorrow. There will be rain tomorrow. Okay,
so receiver don't know that it is true or false, that tomorrow will be rain or not. Okay, so here the information, there is some information in this message, there is no information in this message because this is very trivial that tomorrow is Sunday, but here this message contains some information. Okay, because receiver don't know exactly this message, either it is true or false, or it know nothing about this message. Okay, so let's take two example to see what is self information. Okay, let's two event. The first event is probability to rain heavily tomorrow. And the event 2 is probability of next day, that is tomorrow, that is probability of having next day as Sunday, and suppose today is Saturday. Okay, so here in this event the information contained is 0, because this is very trivial that if today is Saturday then tomorrow will be Sunday. Okay, so this event, the here the probability of this event is 1. Okay, because it is extremely true. Okay, that tomorrow will be Sunday, so probability of happening of this event is 1, and the information contained here, information contained self information contained in event E2 equal to 0, but the probability of this event is 1, that is maximum. Okay, this is minimum and this is maximum. And the first event is probability to rain heavily tomorrow. So this will be depend on the previous days. Okay, so let's see that let's assume that the probability of event E1 equal to 0.4, that is there is some probability to happening of rain tomorrow. Okay, so here there will be some self information E1, we don't know, but there is some, we will calculate in this. Okay, so now let's see formally what is self information. Okay, now we can understand easily what is this. So suppose there is an event A, there is an event A which is the outcome of some random experiment. This is the that can be set of outcomes of some random experiment. Random experiment E. Okay, we already know that what is experiment and what is random experiment and what is event. Okay, so the self information contained in this event A, self information contained in event A, we will denote this self information by I. So I of A denotes that the self information contained in event A, that will be equal to log base B 1 by probability of A. Okay, so here we can see that in the previous example we
we saw that when the probability of event 2 is 1, then the self information contained of event 2 will 0. That we know that when probability of an event is higher, then the self information will be lower, and when probability of an event is lower, then self information content in this event is higher. Okay, this is very important. When probability is higher, then self information is lower, and when probability is lower, self information will be higher. So from this result we have this formula, that is self information is inversely proportional to the probability of the event. So when a probability of happening of A is lower, then self information will be higher, and when probability of happening of this event is higher, then the self information contained in this event will be lower. Okay, and here the base will be B. So the self information contained in event A will depend on this base B. So the base B could be 2 or E or 10. Okay, so when the base is 2, we will we will use this outcome or self information in bits, and when it is E, we will use nats and other things. Okay, these are the names that we use for the self information. Okay, so this is introduction about the self information. Let's see what is entropy. So we already saw that here self information is for an event. Self information is for event. Okay, but the entropy will be for experiments. Okay, see. So let's see what is entropy. So this is important, that we define self information for experiment, but we define entropy for we define self information for events, and but we define entropy for experiments. Okay, so entropy will be this is the average self information contained within an event. Average self information of an experiment. Okay, so let's there is various events, and that is A1, A2, A3 and so on, AN. So these are the events. So we already know that the probability of happening of all these events, that is A of I, will be equal to the 1. All will be equal to the 1, and all outcomes will be equal to the sample space. Okay, the all outcomes of these events will be equal to the sample space. So we denote entropy by H. Okay, so this entropy is for experiment, and in experiment there can be many events. So we define entropy for experiment means that we define entropy for a number of events. Okay, so let's see its formula. So it is denoted by H. This entropy will be equal to the summation of probability of event AI to the self information of this event. Okay, so suppose in an experiment there are 5 events. Okay, so the entropy will be equal to P of first experiment, this is 1, I of A1 plus probability of A2
into self information of A2 plus so on plus probability of A5 and the self information of A5. Okay, so this is the average self information contained within an event that contains 5 events. Okay, so we already know that the self information is log 1 by probability of AI. So if we put this in this formula, we will get summation of probability of AI and then log base B 1 by P of AI. Okay, so if we put this in top, we will get minus summation of P of AI log base B P of AI. Okay, so this is the formula for entropy. Okay, so let's see an example on this. Let's see the example on the entropy. So let's see the sequence 1 2 3 4 5 6 6 5. Okay, so here the probability of 1 2 3 and 4 will be 1 by 8 because there are total of 8 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 and the probability of 1 will be 1 by 8, 2 will be 1 by 8, the probability of 3 is 1 by 8, probability of 4 is 1 by 8. Okay, and the probability of 5 and 6 will be 2 by 8, that is 1 by 4 because there are 2 5s, so probability of 5 will be 2 by 8 because total number of total number of element in sequence is 8 and there are 2 5, so 2 by 8, and the probability of 6 is 2 by 8 because there are 2 6. Okay, so let's put this in formula. So what is the formula? The formula of entropy is minus summation of P of AI log, let's take base 2 P of AI. Okay, so here minus the probability of first, second, third and fourth is 1 by 8, so let's write for all these 4 elements this probability and log base 2 and again the probability is 1 by 8. Okay, into 4. Okay, because there are 4 elements of probability 1 by 8, so we can also write this 4 times, that is minus 1 by 8 log base 2 1 by 8 for P1 and again minus 1 by 8 log base 2 1 by 8 for P2, then for P3, then for P4. So to reduce the complexity, we write the equation for only this one and then we multiply with 4 to all of these. Okay, and then plus and again minus, so we will club with this minus, then we will do the same with these 2 elements. So what is the probability? 1 by 4 log base 2 and then again probability 1 by 4 into this into 2 because the number of this will be 2. So let's calculate this. So here if we already know that probability minus log base b 1 by x equal to log b 1 by x to the power minus 1
equal to log b x. Okay, so we will convert this minus and log base 2 1 by 8 to log base 2 8. Okay, this will go to up. Okay, so h will be equal to 1 by 8 this one and log base 2 8. We will remove this minus sign and put this 8 on the numerator into 4 plus again for this 1 by 4 log base 2 and we put this on numerator into 2. Okay, so here we will get cut this 4 to the 8 and this 2 to the 4. Okay, and so this will be 1 by 2. This will be equal to 1 by 2 and into 3 because log 8 base 2 will be 3 plus because 2 to the power 3 will be 8, so this will be 3 and this will be 1 by 2. We already know that log 4 base 2 will be 2, hence this will be equal to 3 by 2 plus 1, that is 1.5 plus 1, that is 2.5. Okay, so h equal to 2.5. So the entropy with this experiment, that is the sequence of 1 2 3 4 and 5 6 6 5 will be 2.5. so what is the meaning of this? So the meaning of this entropy equal to 2.5, that if we compress this, means if we code this sequence, code the example sequence, then we will never get the bits less than 2.5. So entropy gives us the best way to code the sequence. So the best way to code the sequence of 1 2 3 4 5 6 6 5 is in 2.5 bits. Okay, we can never get less than these bits. Okay, so this is the means of the entropy. So this is all about the self information and entropy. Okay, thank you friends. Hi friends, in this video we will see the prefix codes and uniquely decodable codes. So before going to this, let's familiar with some terms. So the first one is coding. So coding is the assignment of binary sequences to the alphabets. This is the assignment of binary sequences to the alphabet. And the next is code. So code is the set of binary sequences. And the next is code word. Code word is the individual member of the code. Individual member of the code. And the next one is alphabet. It is a collection of letters or symbols. Okay, so let's see an example. So here let's see A1, A2, A3, A4 and 0, 1, 1 0 and 1 1. So these are the alphabets because these are the collection of these are the individual letters. Okay, so these are the letters and all of this we can call as alphabet. Okay,
and these are the code, because code is the set of binary sequences, and these are the code words, because code word is indivisible member of the code. This is the indivisible member of this code, this is also an indivisible member, and so on. So these are the code words, and the assignment of these binary sequences to these letters is known as coding. So coding is the process of assignment of this coding coding sequences to these letters. Okay, so these are the terms that we need to know. Now let's go to the uniquely decodable codes. So we have to study first uniquely decodable codes. Okay, so uniquely decodable codes are the sequence of codes that can be decoded in one and only one way. These are the sequence of codes that can be decoded in only one way. Okay, so let's take two examples in which one is not uniquely decodable and the other one is uniquely decodable, so we can understand it more clearly. So let's take example 1. These are the letters A1, A2, A3, A4, and these are the code words 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Okay, suppose we code the sequence as 1, 0. Okay, so if there is only one way to decode this code, so this then this code will be uniquely decodable, otherwise this code will be not a uniquely decodable code. Okay, so but here there are two ways to decode this code. The first one is A2 A1, that is A2 for this one, A2 1 and A1 0. So this first is 1, so A2, and the second one is 0, so this is A1. Okay, and the second way to decode this as A3. So here 1 0 is coded as A3, 1 is coded as A2, 0 is coded as A1. So there are two ways to decode this. The first way to decode this and the second way to decode this sequence. So this sequence is not uniquely decodable codes. If you can find any sequence in the sequence of codes that is not uniquely decodable, then then we can say that this sequence of code is not uniquely decodable code. Okay, so let's see another example. 0, 1 0, 1 1 0 and 1 1 1. If we take a sequence as 1 1 0 0 like that, so if we decode this, we have only one way to decode this sequence, that is A2 for this 1 0 and then A1 for this 0. Okay, there is no way to decode, there is no other way to decode this sequence. Okay, and so this is the uniquely decodable code, and we cannot find any of these any of the sequences that is not uniquely decodable. So in this sequence of codes we have only one way to decode any sequence, so these are the uniquely decodable codes. So this is the informal way to find that the codes are uniquely decodable or not. Let's see a formal algorithm to find to test that some code are uniquely decodable or not. Okay, so before going to the algorithm, let's familiar with two terms. The first one is prefix and the second one is dangling suffix.
Okay, so suppose there is a letter A having code word 010 and letter B having code 01011. Okay, so we can see that this 010 is the prefix of 01011. Okay, so we defined prefix as let's take an example. Suppose there is a code 01011, then its prefix will be 0, that is first term, 01, that is starting second two terms, then 010, then 0101, then 01011. This is first, then second, then 3, then 4, then 5. These all are prefix to these codes. So here we can see that 010 is one of the prefix. Okay, so this is known as prefix. So here we can say that first one is A is the prefix of B. Okay, because 010 is the prefix of 01011, because these are matching. Okay, and the second one is the sequence of codes or a single code that is not matching in the prefix is called as dangling suffix. This is called as dangling suffix. Okay, so these are the two terms that will be required in the algorithm. So now let's go to the algorithm. So algorithm to test uniquely decodable codes, that is some code is uniquely decodable or not. First we write the algorithm and then we take an example to illustrate this algorithm. So the first step is we group the code words. Okay, and the second one is if no prefix found. If no prefix found, then it is uniquely decodable code. Else, if prefix found, then we add the dangling suffix to the set. The set that we created in the first step, if there is some prefix, if there is some code word that is prefixed to some other code word, then that dangling suffix will be added to the set. We will see example. And the next step is if this dangling suffix is equal to some already present code word. Okay, so if the dangling suffix that we find in step 2 is equal to some code word that is already present in the set, then this is not uniquely decodable. Okay, and else we don't find such things, and all dangling suffixes are over, or completed. Okay, so this is uniquely decodable code. Okay, so let's see an example. Okay, so here A1, A2, A3, A4, let's take as 0, 1, 0, 1 and 1, 1. Okay, so the first step is group the code words. So we group the code word, that is 0, 1, 0, 1 and 1, 1. Okay, and the second step is
if no prefix found. So let's check there is prefix or not. So here we can see that 0 is the prefix of 01, 1 is the prefix of 11. So this is false, that is if no prefix found. Yeah, there is prefix, so then it is UDC, this is not. But means till this point this is not uniquely decodable, so we will go to the else part. Okay, so by saying this we can say that all the prefix code are uniquely decodable codes. Okay, so keep it a point that all prefix codes are uniquely decodable codes. We will see what is prefix codes in some time. So let's first stick to this example. So first step is over, and the second step is if no prefix found. No, this is not. Else if prefix found. Yeah, this is 0 is the prefix of 01, 1 is the prefix of 11. So if prefix found, then add the dangling suffix. Okay, so here we will add let's see these two. Okay, first these two. So here copy this 1 and in A1 and A3 1 is the dangling suffix because 0 is matching, and then 1 will be dangling suffix. Okay, so we will add 1. So here we can see that this 1 is same as the already present code word. Okay, this one is dangling suffix that we added. So here 1 is already present as a code word, so this dangling suffix is equal to the code word, then it is not uniquely decodable code, because here if dangling suffix is equal to some code word, then it is not uniquely decodable. Suppose that in this step we have not found that this dangling suffix is equal to some code word, then again this is A, then again we will add the other dangling suffixes. We go on adding all these dangling suffixes and see that if any dangling suffix is equal to some code word or not. If this is true, then it is not uniquely decodable. But if we go on doing this and if we found that all the dangling suffixes are completed or over, and we don't find any dangling suffixes that are equal to any of the code word, then that will be uniquely decodable code. So let's see a second example. Let's see A1, A2, A3, A4 and 0, 1, 0, 1, 1, 0 and 1, 1, 1. So here first step is group the code words, that is 0, 1, 0, 1, 1, 0 and 1, 1, 1. Okay, and the second step is if no prefix found, then it is uniquely decodable. So here we can see that 0 is not prefixed to anyone, 1, 0 is not prefixed to anyone, 1, 1, 0 is not prefixed to anyone, and 1, 1, 1 is not prefixed to any of the other. So here it is uniquely decodable code in second step only, because we cannot find any code word that is prefixed to some other code word. Okay, so this is about uniquely decodable code. Let's see the prefix codes. Prefix code. Okay, so if any code word is not prefixed to other code word, then it is called as prefix code. If any code word is not prefixed to any other code word, then it is prefix code. Okay, it is not like if some code word is prefixed to some code word, then it is prefix code. No, this is opposite. That is, if any code word is not prefixed to any other code word, then it is prefix code. For example, suppose we have 4 code word, that is 0, 1, 0,
and 110 and 111. Here 0 is not prefixed to any of these three, 10 is not prefixed to any of these three, 110 is not prefixed to any of these three, and again 111 is not prefixed to any of these three. So these are the prefix codes. But if we take second example, that is 0 1 1 0 1 1, here we can see that 1 is the prefix of this 1 0 and also 1 1. So these sequence of codes are not prefix codes. Okay, so yeah, this is also an informal way to find that if some code is prefix or not. Let's see an algorithm to find that. This is very simple algorithm to find that any sequence of code is prefix code or not. Okay, this is by tree method. So let's see 3 examples. Okay, so first one is 0 1 1 0 and 1 1. Okay, the second one is 0 1 0 1 1 0 and 1 1 1, and the third one is 0 0 1 0 0 1 and 0 0 0 1. Okay, so we have to find that which one is prefix code and which one is not. Okay, so we construct tree for all these 3. Okay, and the way of constructing the tree is we have some root node. Okay, and then for 0 we move left and for 1 we move right. Okay, so for this first we will move left, this is 0 and this is A1. Suppose the first one is A1 and second one is A2 and third one is A3 and fourth one is A4 for all this. Okay, so for 0 if we move left, this is 0, and for 1 we move right, this is A2. Okay, and this is 1 0 means 1 and then left 0, this is A3. Okay, for 0 we move left and for 1 we move right. So 0, this is 0, 1, this is right, and then 1 0, then 1, after that 0 left, and this is 1 1. Though, so 1 is already present, so right of 1 will 1 1 because 1 in the right. So here is a tree for this first example. Let's construct the tree for this second example. So here is the root node. Here A1 for 0, and here is some other node for 1 because we need 1 0, and here A2 for 1 0 and 1 and we don't have 1 1, but we do have 1 1 0, so we will have 1 for some other node and we need 1 1 0. So here 0 for A3 and again 1 1 1 1 1 and then 1 for A4. Okay, and now this is the first, this is the second, and this is the third. Let's construct for this. So here 0 for A1 and then 0 1 0 here, 1 here for A2, and then 0 0 1 here, 0 0 and then 1 for A3. Okay, and here 0 0 0 1 for A4, 0 0 and again 0 for A3. Here 0 0 1 for, okay, 0 0 0 1 for A4, 0 0 0 and 1 for A4. Okay, 0 for A1, 0 1 for A2, 0 0 1 for A3 and 0 0 0 1 for A4. Okay, so if here is, if all the letters are at external node, okay, if all letters at external node of the tree, then it is prefix code.
Okay, if all the letters, that is A1, A2, A3, A4, are at external node only, then it will be prefix code. And if some letters are at external and some at internal, or all are internal, then that will be not prefix code. So let's see here. A1 is external node, true. A3 is external, true. A4 is external, true. But A3, this is not external node, this is internal node. Okay, this is internal node. External node means leaf nodes. Okay, and internal means not leaf nodes. So here A2 is not external node, so this is not prefix code. Okay, this is not prefix code. Let's see second example. Here A1 is at external, A2 external, A3 external, A4 external, so this is the prefix code. Let's see this. Here A2 is external, A3 is external, A4 is external, means that at leaf. But here A1 is not external node, so this is also not prefix code. Okay, so this is the tree method to find that some code is prefix or not. So this is all about prefix code and uniquely decodable codes. Thank you, friends.
Hi friends, in this video we will see Huffman coding. So this is used to compress the files. It is used for compression, and it is used only when the probability of source file is known. That is, the probability of the elements of the source file is known. Okay, but when this is unknown, that is, probability of the elements of the source is unknown, then we will use adaptive Huffman coding. And there is one also coding, that is minimum variance Huffman coding. We will see this in next lecture. Minimum variance Huffman coding. It also come in the algorithm in which probability of the elements of the source file is known. Okay, so let's start with the Huffman coding. Okay, suppose a text file of some size, in this text file is made up of alphabet only from A1, A2, A3, A4 and A5. That is, there is only these letters in this file. Suppose here A1, A2, A5, A4, A3 and so on. A1, A5, A3, A2 and this. Okay, and now take this. Here is letter and here is probability, that is already given in the source file, hence we are using Huffman coding, and then here code word. Okay, so letters are A1, A2, A3, A4 and A5, and suppose that, assume that the probabilities are 0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1. The probabilities means that in the total data or in the total alphabet, there are 20% A1. That means that in this file 20% of the data are present as A1, 40% are A2, 20% are A3, 10% are A4 and 10% are A5 of the total. Okay, so if we don't use any algorithm to find the code word of these letters, then first we will see this, that if we not use Huffman coding, then what will happen, and if we use Huffman coding, then what will happen. Okay, so here is we write code without using, okay, without Huffman coding. If we use, then what are the code words, and if we use Huffman coding, then what are the code words and what is the benefit of using Huffman coding instead of direct coding. Okay, so we know that if we have two letters, that is A1 and A2, we can represent it with only one bit, that is 0 or 1. If we have four letters, that is A1, A2, A3, A4, then we can represent it in 2 bits, 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. And as this, if we have 8 letters, then we can use 3 bits. Okay,
1 0 0 and so on 1 1 1. Okay, it can be anything, the numbers don't matter, but this is the thing that 3 bits are required. So for representing these 5 letters we need 3 bits and not 2 bits, because if we use 2 bits then only 4 letters can be represented, but to represent 5 bits we need 3 bits. Okay, so let's do this. Let's assume 3 bits 0 0 1 0 1 0 and 0 1 1 and 1 0 0. So let's code directly to this in 3 bits, because 2 bits is not enough, 4 bits will be higher, so 3 bits will be okay. So now find that the number of bits required per symbol. Okay, so let's write it as L1. So number of bits required per symbol. So here number of bits are 3 and the probabilities are 0.2 plus for A1, for A2 there are 3 bits for each letter and there are 40% letter. For A3 there are 3 letters and there are 20% letters. For A4 there are 3 letters, 3 bits required and there are 10% letters, and for A5 there are 3 bits required and there are also 10% letters. So if we calculate this, here we will get, we take 3 as common, 0.2, 0.4 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.1. okay, so all will sum up to 1, because that the total probability will be equal to 1, equal to 3 bits per symbol. Okay, so when we use direct coding method, then we got to represent this file we will need 3 bits per symbol. Okay, in this file, if we don't use Huffman coding, so to represent each of the letter we will need 3 bits. Okay, now start with the Huffman coding and then find the code word, and then also find what is the number of bits per symbol, and then we see Huffman coding is good or bad than this. Okay, so now let's start with the Huffman coding, that is how to find the code word for these letters using Huffman coding. Okay, so there are 2 methods. Okay, so let's start with the first method. Okay, so in this we will arrange the letters from top to bottom in the decreasing order of probability. Okay, so the highest probability is of A2. So here A2 highest probability 0.4. Then we have A3 and A1, but we will write A1 because it is at top. So okay, because it is present before, so 0.2, and then A3 0.2, now A4 0.1 and A5 0.1. okay, now we will take 2 letters having least probabilities. Okay, so from all of this there are A4 and A5 having least probabilities. Okay, so we will copy other as it is, A2, A1 and A3. We will copy this as it is and we merge it. The 2 least probabilities we merge it, and the sum will be 0.1 plus 0.1 0.2. Sum will be 0.2, and in Huffman coding we will if the sum is same as the some other already present probabilities, then we will put in down before other probabilities. Okay,
So here 0. Let's name it A4 dash 0.2. okay. So here the sum is 0.2. okay. So we may put the this here or here or here, okay, because all these are 0.2, but in Huffman coding we will put down every probabilities that is equal to it, okay. Suppose there is some 1.1, then we will put it here, okay, above 0.1, okay. When the probabilities are same, then we put down to it, okay, and then we put 0 here and 1 here. I will tell you why, okay. Now again we merge the two letters having least probabilities, okay. So we have to merge these two letters, because we can merge this or this, but in Huffman coding we will merge this in the we will go from bottom to top, okay. So we are going to merge these two, hence we will copy these two as it is, A2 0.4 and A1 0.2, okay. Now here we can see that if we merge these two, then the sum will be 0.4, okay. So 0.4 is here, 0.4 and this is 0.2, okay. So we already know that this 0.4 will put above 0.2, this is clear, but this 0.4 will put below this 0.4. If two probabilities are same, then we put down, okay. So here we will put this A1 here 0.2 and merge this and this here, that is here. Let's name it A3 dash, and that will equal to 0.4, okay. And the up will be 0 and down will be 1, okay. So here 0.4, because we always need it in decreasing order from top to bottom, okay. Now let's merge two letters having least probability. So these are here, this may be this and this, but we will not merge this, we will merge from the bottom, okay. So this the sum will be 0.6, so and this is here, we will copy this 0.4, but the sum will be 0.6, hence we will not write here 0.4, we will write here 0.4, and we write here A1 dash as 0.6 after merging this, okay. After merging this and this, 0.4 and 0.2, 0.6, and here we will put 0 and here we will put 1, okay. And now we have only 2, then we put up at 0 and down 1, and then the sum will be 1, okay. So here is very simple technique. So okay, now we will find the code word for all the letters, okay. So let's start with this. Here we will go from right to left, okay. So let's find here A2. So A2 will be 1, A2 will be 1, okay. Now A1 will be, we will go from here 0 and then 1, okay. For this is 2, 0 and then 1. So for A1 this is 0 1, okay. A3 is here. For A3 we will come from here 0 0 and 0. So for A3 3 zeros. A4 is here, so 0 0 and here 1 and then 0. So 0 0 1 0, okay. And now A5 0 0 1 and 1. So 0 0 1 and 1, okay. So this is the by Huffman coding we generate the code word for each letter having probabilities these, okay. Now let's find the number of bits per symbol required.
Okay, so let's denote it as L2 equal to, now we have number of bits 2 here for A1 into 0.2 probability, plus for A2 number of bits is 1 into 0.4, for A3 number of bits is 3, so 3 into 0.2, for A4 number of bits are 4 into 0.1, and for A5 the number of bits are 4 into 0.1. okay, so let's do the calculation. So 0.4 plus 0.4 plus 3 into 2 0.6 plus 0.4 plus 0.4, so 20 10 14 18 2.2, so it got 2.2 bits per symbol. Okay, so we can see that by using Huffman coding we got 2.2 bits per symbol. So to directly, when we find directly previously, then we got 3 bits per symbol, means that in a file to represent each letter previously we have 3 bits per symbol, but now to represent this file we have 2.2 bits per symbol, hence we compress the file. Okay, so by using Huffman coding we can represent the bits of a file, represent the symbols of a file in the minimum number of bits. Okay, so let's see the second method to find the Huffman code, to find the code word. Okay, and let's see this is equal to the already find code word or not. Okay, let's see the second method. That is tree method. Okay, so in this we will construct a tree. Okay, so let's first write the letters A2 in descending order: A2 0.4, A1 0.2, A3 0.2, A4 0.1 and A5 0.1. okay, now we construct tree by considering 2 letters having least probabilities, and we write this at bottom because this tree will grow upside. Okay, so let's take A4 and A5 because this 2 is of least probability. Okay, so here 0.1 and 0.1, this is for A4, this is for A5, and yeah, the sum will be 0.2. okay, so these are completed. Now if we use a convention, if the next element is equal to this element, we put the next element at left. Okay, and if it is less than this element, we put at right, and if greater than this, we put left. Okay, so here if the next element is greater than the present element, okay, so we will put it at left, and when the next element is less than present element, we will put at right, and when next element is equal to the present element, then we will put it at left. Okay, so here we have A3 as our next element because this 0.2 and this 0.2 are the elements having least probabilities. Okay, and this is equal to this hence we will add this at left. So 0.2, this is for A3, we will have 0.4. okay, and now we are done with A3. Now we have A1. okay, so A1 0.2 is less than 0.4.
Okay, so when next element is less than present element, we will put it at right. Okay, so we will put a1, that is 0.2 at right. This is a1, and the sum will be 0.6. Okay, now we are done with a1. Now a2 is remaining. So a2, 0.4 is less than 0.6. Here next element is less than present element, so we will add it at right. Okay, so here 0.4 we will add, and we stop constructing the tree when we got 1. Okay, and this is a2. Okay, now we write 0 on the left edge and 1 at the right edge. Okay, so left 0, right 1, left 0, right 1, left 0, right 1, left 0, right 1. Okay, you can also write once at the left and 0 at the right. Okay, so let's do. So for a2 here, and we go from top to bottom. Okay, so a2 is here, and from top we got a2 by traversing 1. So a2 1. Okay, now a1 0 1, a1 0 1, this is also correct. Now a3 0 0 0, this is also correct. Now a4 0 0 1 0, 0 0 1 0, this is also correct. And a5 0 0 1 1, 0 0 1 1, this is also correct. So there are two methods to find the code words of the letters by using Huffman coding. Okay, so these are the two methods. So by using this, we can say that we have 2 points to say. The first point is the letters having higher probability will have smaller code words. Here the highest probability is for a2, and the code word is 1, that is the code word is of a smaller length. Okay, and then probabilities are 0.2 0.2, so then the length of the code word will increase. Here 2 and then 3, and then that means when probability decreases, then length of code word increases. Okay, and the next point is length of two least probabilities are same. Length of code word of two least probabilities are always same. Okay, so here two least probabilities are this a4 and a5, and the length of the code words are 4, that is equal. Okay, here 1, here 2, here 3, but the length of the code words are equal for the probabilities of the two least equal probabilities. Okay, so this is all about Huffman coding. So thank you friends. हेलो फ्रेंड्स, मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोड देखते हैं. ये हफमैन कोड का बेटर फॉर्म है. दोनों हफमैन कोड और मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोड स्लाइटली डिफरेंट है. बस सॉर्टिंग कैसे करते हैं, बस वहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब सेम है. यहाँ पे ये लेटर्स हैं और ये इनके प्रोबेबिलिटीज़ हैं. जहाँ पे हम सॉर्टिंग करेंगे देखेंगे वहाँ पे बस डिफरेंट है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम होते हैं 2 उसको ले लेते हैं और इसका सम करेंगे तो 0.2 आएगा. यहाँ पे 0, यहाँ 1.
जब सम करेंगे तो 0.2 आएगा, तो ये तो 0.4 है, तो इसको एज इट इज हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर ये हफमैन कोड होता तो क्या होता, यहाँ पे A1 0.2 लिखते, फिर A3 0.2 लिखते, और इसका सम जो है 0.2 उसको सबसे नीचे लिखते जो क्योंकि अगर सेम सम है तो हफमैन कोड में इसको लास्ट में लिखते हैं, बट मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोड में इसको टॉप पे लिखते हैं। बस इतना ही डिफरेंट है, बस सॉर्टिंग का ही डिफरेंट है। तो 0.2 आ रहा है इसमें, इसे दोनों का सम, तो इसको हम टॉप पे लिखेंगे। इसको A4 जूम कर ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे A1 आ जाएगा 0.2, और फिर यहाँ पे A3 आ जाएगा 0.2। ये एक्चुअली ऐसा है मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोड में। अगर सिर्फ हफमैन कोड होता तो यहाँ पे A2 होता, यहाँ पे A1 होता, यहाँ पे A3 होता, और ये A4 यहाँ पे होता। ये 0.2 सम आया है तो थर्ड पे होता, बट यहाँ पे 0.2 आया। सिर्फ इतना डिफरेंस है तो सम सेम आता है, तो इसमें इसको टॉप पे रखेंगे, बट उसमें उसको बॉटम पे, हफमैन कोड में बॉटम पे। फिर से हम 2 लेंगे मिनिमम, 0 1, इसका सम 0.4 होगा। हफमैन कोड होता तो टॉप पे यही रहता, सेकंड पे हम इसको लेते, बट यहाँ पे ये चला जाएगा टॉप पे। तो इसको हम A1 डैश को जूम कर ले रहे हैं, तो 0.4 हो जाएगा। देन यहाँ पे A2 0.4 होगा, फिर यहाँ पे ये A4 डैश हो जाएगा 0.2। फिर इसको मिनिमम 2 लेंगे हम, तो ये 0 1, इसका सम 0.6 होगा, 0.6 सबसे ज़्यादा है तो ये टॉप पे हो जाएगा। A2 डैश पे ले रहे हैं, और ये A1 डैश एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 0.4। फिर इसका सम 1 हो जाएगा, हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, इसका सम यहाँ 1 हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 1 होगी। इसके बाद हमें ये दिया हुआ है लेटर, इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। A1 0.2, A2 0.4, 0.2, 0.1, 0.1। अब हमें इसका A1 A2 A3 A4 A5 का कोडवर्ड फाइंड करना है। हफमैन कोड में एक्चुअली क्या करते हैं, कोडवर्ड फाइंड करना बहुत इजी होता है। स्टार्ट करते हैं 0 1 होते हुए चले जाते हैं, बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा। फाइंड करते हैं A1 का, फिर देखते हैं। तो A1 यहाँ पे है। अगर हम देखें, अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें तो 0 से अगर हम यहाँ पे आएंगे तो 0 से A2 एंड 1 से A4 डैश, बस हम स्टॉप हो जाएंगे, इसके आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे फाइंड करने का तरीका अलग है। A1 फाइंड करना, तो A1 यहाँ पे है, तो A1 0 से आया है A1 डैश से, A1 डैश से ये 0 से आया, तो हम क्या करेंगे, पहले A1 डैश के पास जाएंगे। A1 डैश यहाँ पे है, तो फाइनल से 1 से हम आ जाएंगे A1 डैश पे, और फिर A1 डैश से हम 0 से आ जाएंगे A1 पे। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे इसका A1 का कोडवर्ड। A1 देखेंगे A1 कहाँ से आ रहा है, A1 डैश से, फिर देखेंगे A1 डैश कहाँ है, A1 डैश यहाँ है, तो A1 डैश कहाँ से आ रहा है, 1 से, तो 1 से A1 डैश, फिर A1 डैश से 0 से A1। फिर हम A2 फाइंड करते हैं। A2 यहाँ पे है, ये यहाँ पे इजिली फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे A2 क्योंकि आ रहा है A2 डैश से, और A2 डैश 0 से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0, तो A2 हो जाएगा 0 0। नाउ A3 हम फाइंड करेंगे। A3 यहाँ पे है सेम A1 जैसे, A3 आया है 1 से A1 डैश से, A1 डैश आया है फिर 1 से, तो 1 से हम आ जाएंगे A1 डैश पे, और फिर A1 डैश से 1 से आ जाएंगे हम A3 पे। फिर A4 0 से आए हम A4 डैश पे, तो हम A4 डैश फाइंड करेंगे। कैसे आएंगे, A4 डैश आए हैं हम 0 और 1 से, A4 डैश आए हैं 0 1 से, 0 1, और फिर A4 डैश से हम A4 आए हैं 0 से, ये हो जाएगा 0 1 0। वैसे ही A5 आए हैं हम A4 डैश से, और A4 डैश आए हैं 0 1 से, 0 1 से A4 डैश, फिर A4 डैश से 1 पे,
A5। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम हाफमैन कोड की तरह, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है उसका जो कोडवर्ड लेंथ है वो कम है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसका कोडवर्ड ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि ये जब इसको इनकोड करेंगे इस फॉर्मेट में तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको नॉर्मली बिना बिना कंप्रेस किए देखें तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा। अगर हम कंप्रेस करके देखें तो इसका एवरेज लेंथ क्या होगा। एवरेज लेंथ कंप्रेशन के बाद ये 0.2 प्रोबेबिलिटी है, और इसका लेंथ है 2, 0.4 प्रोबेबिलिटी है, इसका लेंथ है 2, फिर 0.2 है इंटू 2 लेंथ इसका, यहाँ पे 0.1 इंटू इसका लेंथ 3 है, फिर 0.1 इंटू इसका लेंथ 3 है। तो ये टोटल करने पे 2.2 आएगा। तो 2.2 बिट्स हम पर लेटर के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली अगर हम इसका यूज नहीं करते, अगर प्रोबेबिलिटी का ये वाले कोडवर्ड का अगर हम यूज नहीं करते तो क्या होता कि हम हर लेटर के लिए 3 बिट का यूज करना पड़ता हमें। अगर ये 4 होते 1 2 3 4 तो हम 2 बिट से हमारा काम चल जाता 0 0 0 1 1 0 1 1, बट यहाँ 5 है तो हमें 3 बिट का यूज करना पड़ेगा। जब 3 बिट का यूज करना पड़ेगा तो सबके लिए कोडवर्ड क्या हो जाएगा 3। ये क्या है कि विदाउट हफमैन या मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोड है 3 बिट। तो हम ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से 2 2 2 3 3, वो अगर हम इस तरीके से ना करें तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो ये 2.2 बिट्स पर लेटर से काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 के आसपास होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकोडिंग से करते हैं। तो ये जो कोड होता है वही मिनिमम वेरिएंस हफमैन कोड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। A3 dash 0.50, we will when we add these two we will get 0.50, and then we merge it, we will get 1. Okay, so this is the Huffman tree, and we have to find the code word for A1 to A5. Okay, so let's write it here. Letter and Huffman code. Okay, so here A1, A2, A3, A4 and A5. Okay, so here for A5 we have 0, for A3 we have 1 0, for A1 we have 1 1 0, for A2 we have 1 1 1 1 1 1 1 1, and for A4 we have 1 1 1 and then 0 1 1 1 0. So these are the Huffman codes of these letters. So the first question is already completed and the second question is completed. We have find out the Huffman codes for this source. Let's find the solution of third question. See, the third question is find the average length of this code. So to find the average length of this code, we need the Huffman coding. Okay, so average length is represented by small l. So here the probability of first letter is 0.15, and we multiply it with the length of the Huffman code, that is 3, and then probability of A2, that is 0.04, and we multiply it with the length of the Huffman code, that is 4, plus probability of A3 0.26 into 2 plus 0.05 into P4 4 plus
0.50 into 1. Length of this is 1. Okay, so let's calculate this. This will be 0.45 plus 0.16 plus 0.52 plus 0.20 plus 0.50. Okay, now let's add this. Zero 0.45 plus 0.16 plus 0.52 plus 0.20 plus 0.50. That will be equal to 1.83. That is the 1.83 bits per symbol. Okay, so the average length of this sequence is 1.83 bits. Okay, so we have solved all the 3 questions. Okay, thank you friends. Hi friends, in this video we will see the unary code and Golomb code. So let's start with the unary code. So in unary code we represent a positive integer n by n ones followed by 1 0 followed by a 0. Okay, for example, suppose 3. So we to represent this number 3, we have to represent a number n, we have n ones and then a 0. So to represent number 3, we will have 3 ones and then 0. And for example 5, then 5 ones and 1 0. Okay, so this is the first method of unary code. This is the first form of unary code, and the second can be represent as n zeros followed by a 1. Okay, for example 3, then 3 zeros and 1, or 5, then 5 zeros and 1. So these both are unary codes. Okay, so the representation of unary code of 0 will be 0, not 0 followed by 1 or not 1 followed by 0. Okay, and for other positive integers we have either number of ones followed by a 0 or number of zeros followed by a 1. So this is all about unary code. Let's start with the Golomb code. The second one is Golomb code. So in this we have given 2 numbers n and m, and by using these 2 numbers we have to find the Golomb code, and the Golomb code will be q and then r. Okay, we will see what it is. Okay, so the first step is we will find the quotient q equal to CL of n by m. We divide this number n by m. Okay, and then we find remainder r equal to n minus q of m. Okay, so this is the first step, and then we represent q
in unary code. Okay, and the third step is the representation of R. Okay, so you will see how to represent R, and this representation, that is representation of Q and representation of R, when we combine this, then QR will be our Golomb code. So let's see how we represent R. Okay, so let's write here. Mm, 3 of A. Okay, this is the representation of R. If M is the power of 2, that we have already given N and M, that M, if M is the power of 2, then we represent log M base 2 bits for R. This is remainder. Okay, else means if M is not power of 2, else M is not power of 2, then we will do, so when M is not power of 2, then we represent, we use floor of log M base 2 bits for binary representation of R for first 2 to the power seal of log M base 2 minus M values. Okay, this algorithm seems to be difficult, but trust me, it is very simple. Okay, and second one is we use seal of log M base 2 bits for representation of R plus 2 to the power log M base 2 seal minus M. We use itna bits for binary representation of itna for rest of the values. Okay, so this is the representation of R. Okay, and when we find the representation of Q and R, we then club them to find the to generate the Golomb code. Okay, so let's see an example to illustrate this algorithm. Let's see an example. Suppose n equal to 3 and m equal to 5. Okay, so first we will find Q and R. So here Q will be n by m, that is 3 by 5, that will be equal to 0, and then R equal to n minus Q of m, that is 3 minus Q0 into 5, that is 3.
So the first step is completed. We have the Q and R. So next we will represent these two numbers. Okay, so the second step is we have to represent Q in the unary representation. Okay, so unary representation of Q is that is 0 is 0 only. Okay, now we have to represent the R. Okay, so for this the first step is let's see m is the power of 2 or not. So here m is not power of 2. Okay, so let's calculate this. Log 5 base 2 of seal and then log 5 base 2 of floor. Okay, so this will be equal to 3, and because the value of this will be 2 point something, and hence seal will be equal to 3, and the value of this equal to 2 point something, and hence the value of floor equal to 2. Okay, so here the third of first step will be we use this 2-bit representation of R, means 3 for this 2 to the power 3 minus 5, that is 3 values. Okay, that is 0, 1 and 2. So when the remainder is 0, 1 or 2, we use 2-bit representation of 3 for these 3 values. Okay, and next we use 3, that is this 3-bit representation of here R plus this, means 6 for rest values. Rest values means 3 and 4, because when we divide some number with 5, then the remainder will always be less than 5. So the remainder will be 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so here we have to represent Q in the unary that we have already represent, and then we have to represent R. Okay, so the value of R is 3, so 3 is here. Okay, so we have to represent in 3-bit representation of 6 for rest value, that is 3. So to represent the value 3, we will use 3-bit representation of 6, and we already 3-bit binary representation of 6, and we already know that the binary representation of 6 will be 1, 1 and 0. Okay, so the Golomb code for this equal to Q and R, that is unary representation of Q, that is 0, and then 3-bit binary representation of 6, that is 1, 1, 0. So this is the Golomb code for this example. Okay, thank you friends. हेलो फ्रेंड्स, AKTU 3489 का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, इनकोड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 16 वैल्यूज यूजिंग राइस कोड विथ j इक्वल टू 8 एंड 1 स्प्लिट सैंपल ऑप्शन. तो ये हमारा 16 वैल्यूज है और गिवन है यूज प्रीवियस वैल्यू एज प्रेडिक्शन एंड 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट. तो जो अंडरलाइन एलिमेंट्स है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 1 स्प्लिट सिंपल ऑप्शन होता क्या है. हाँ, इसके और भी वेरिएशंस होते हैं, 1 स्प्लिट, 2 स्प्लिट, 3 स्प्लिट, इस तरीके से. तो एक हम एग्जांपल लेके इसको देखते हैं. सपोज 3 है. 3 को अगर हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करें तो ये 3 होता है और 6 0. अगर हम 1 स्प्लिट सिंपल ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा LSB का 1 बिट होता है और ये बाकी बिट्स, तो इस 1 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं और जो भी बचता है उसकी बाइनरी वैल्यू का हम यूनरी कोड लिखते हैं.
ठीक। और यूनरी कोड लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर 2 का हमें लिखना है यूनरी में तो हम या तो 2 1 0 लिख सकते हैं या फिर 2 0 और 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो तरीके होते हैं यूनरी कोड लिखने के। तो हम ये सेकंड वाले का यूज़ करेंगे, मीन्स कि जो भी नंबर है उतना 0 फॉलोड बाई 1। इस कन्वेंशन का हम यूज करेंगे। तो इस 1 को हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद इसका 0 0 0 0 0 0 1 का जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 होता है, और 1 को यूनरी में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 1 को हम लिखेंगे 0 और 1 0 1। तो ये जो है 1 0 1 ये है इस नंबर का 1 स्प्लिट सैंपल ऑप्शन। सपोज अगर यही अगर दिया हो 2 स्प्लिट, तो क्या करेंगे, सेम नंबर लिखेंगे 1 1। इसमें क्या करेंगे, 2 स्प्लिट है तो LSB का 2 ले लेंगे और बाकी ऐसे रहने देंगे। तो इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे 1 1। और यहाँ पे है 0 0 0, इसका बाइनरी वैल्यू है 0। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1 होगा। एक्चुअली क्या है कि यूनरी कोड सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, बट 0 को अगर हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो 0 नंबर ऑफ 0 फॉलोड बाई 1, 0 नंबर ऑफ 0 मतलब कुछ नहीं, फॉलोड बाई 1। इस तरीके से हम 0 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 1 1 1 हो जाएगा। ये 2 स्प्लिट ऑप्शन है, तो यही 1 स्प्लिट सैंपल ऑप्शन का यूज करना है। तो ये हो गया, इसका यूज हमें लास्ट में करना है कोड फाइंड करने के लिए। नाउ राइस कोड हमें कैलकुलेट करना है। j इक्वल टू 8 का मतलब ये है कि हम ब्लॉक बनाएंगे और वो 8 नंबर्स का ब्लॉक होगा, और फिर इन 8 नंबर्स के ब्लॉक को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 16 नंबर्स हैं टोटल। तो हमारे पास ये 8 का 2 ब्लॉक बनेगा। उन दोनों ब्लॉक को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। यही जो कोड होंगे वो राइस कोड होंगे। तो अब देखते हैं कैसे राइस कोड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे yi हमारा नंबर दिया हुआ है। yi बार जो है वो है ये प्रेडिक्शन वैल्यू। क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रेडिक्शन वैल्यू क्या लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यूज प्रीवियस वैल्यू एज प्रेडिक्शन 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका तो प्रीवियस वैल्यू है, इसका तो है, बट फर्स्ट वाले का प्रीवियस वैल्यू नहीं है, इसलिए ये दिया है कि 0 का यूज करना है ये प्रेडिक्शन के लिए हमें फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्रेडिक्शन हमारा 0 हो जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट के लिए यूज प्रीवियस वैल्यू। तो इसका प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 33, सबका प्रीवियस वैल्यू ले लेना है। 39 37 38 4 40 है, 39 40 40 41, ये 49 लिखेंगे। इसके बाद क्या है कि हम DI फाइंड करेंगे। DI क्या है, डिफरेंस है। ये जो YI है और YI बार का डिफरेंस है, YI माइनस YI बार। तो ये हम फाइंड करेंगे DI, YI माइनस YI बार। 32 माइनस 0 32, ये हो जाएगा 1 2 4, ये 37 माइनस 39 माइनस 2, 1 1 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1। तो ये हमने DI फाइंड कर लिया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे TI। TI क्या है, मिनिमम ऑफ y मैक्स माइनस YI बार कॉमा YI बार माइनस y मिन। y मैक्स क्या है, y का मैक्सिमम वैल्यू जो कि 40 है। तो y मैक्स यहाँ पे है 41 है, सॉरी, y मैक्स क्या है 41 है मैक्सिमम वैल्यू, और y मिन क्या है इसका मिनिमम वैल्यू। ये y मैक्स या फिर y मिन क्या है कि yi या yi बार में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों का मिला के, तो दोनों को अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 41 है, और अगर हम दोनों को देखें तो मिनिमम वैल्यू हमारा 0 है। yi में तो कोई 0 है नहीं, बट यहाँ पे yi बार में 0 है, तो यही मिनिमम वैल्यू है। तो जब हम इसको यहाँ पे अगर हम पुट करें
इसकी वैल्यू, तो क्या होगा 41 माइनस वाई आई बार, और हम वाई मीन पर अगर 0 पुट कर दें तो ये सिर्फ रह जाएगा वाई आई बार। तो टी आई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 41 माइनस वाई बार और वाई बार, 41 माइनस वाई बार और वाई बार दोनों को कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम होगा उसी को हम टी आई पे लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे ये वाई मीन की वैल्यू 0 है तो ये कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जा रहा है, बट वाई मीन की वैल्यू अगर 0 नहीं होती तो फिर हमें सबके लिए टी आई की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता। यहाँ भी सबके लिए करना पड़ेगा बट थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं 41 माइनस वाई बार, 41 होगा और फिर वाई बार। तो सिंपली यहाँ पे ना देख के अब हम डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेट करेंगे, इसको 41 से माइनस करेंगे और सेम इसी से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि वाई बार से ही कंपेयर करना है, वाई बार से ही। तो 41 माइनस 0 41 और 0, तो इसका मिनिमम हो जाएगा 0। 32 और 41 माइनस 32 9, ये हो जाएगा 8 6 2 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 0। ठीक, जैसे सपोज यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो 40 और 41 माइनस 40 जो कि 1 है, 1 और 40 मिनिमम 1 है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। नाउ इसके बाद हमें एक्सआई कैलकुलेट करना है। तो एक्सआई के लिए ये है फॉर्मूला जो हमें, जिसका यूज करके हमें कन्वर्ट करना है। तो हम एक्चुअली ऐसे अगर हम एक एक करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट को ले लेंगे और जो भी इस कंडीशन में आते हैं सबसे पहले उनको कर लेंगे, उसके बाद जो इस कंडीशन में आते हैं उनको कर लेंगे, फिर अदरवाइज वाले में इनको कर लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम ये फाइंड कर रहे हैं डी आई की वैल्यू जो कि 0 और टी आई के बीच में हो, पहले वो फाइंड करके डी आई इंटू 2 कर देंगे एक्स आई की वैल्यू में। तो 0 से टी आई के बीच में डी आई की वैल्यू 0 से टी आई, ये नहीं है अभी, फर्स्ट के लिए सिर्फ हम कर रहे हैं। एक्चुअली ये है डी आई 32, नहीं ये नहीं है, डी आई है 1, 0 से 9 के बीच में 1 है तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 8 के बीच में है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 6 के बीच में है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से, ये नहीं है, ये 0 से 4 के बीच में है, हाँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी है, ये भी है। ये डी आई 0 है, 0 से टी आई के बीच में है तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। -1 ये नहीं है, 0 से बाहर है। फिर ये 0 से 2 के बीच में है, ये 0 से टी आई 2 है 0, तो यहाँ पे 2 इंटू डी आई कर देंगे जो कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर 0 है, फिर 0 है तो 2 इंटू डी आई कर देंगे तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। 1 है, 0 से 1 के बीच में है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इतने सारे फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, इस तरीके से इजी हो गया फाइंड करना। अब हमें 4 वैल्यूज और फाइंड करनी है, देखते हैं किस में आएगा। यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला चेक करते हैं कि डी आई की वैल्यू माइनस टी आई से 0, यहाँ पे 0 इक्वल नहीं है, 0 से कम, इसमें जो भी वैल्यू होगा उसको 2 डी आई -1 करेंगे। तो ये है -2 मतलब माइनस टी आई है, डी आई माइनस टी आई के इक्वल है, तो हम ये यूज करेंगे। ये मॉड है डी आई का तो इसके पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 2 इंटू डी आई है -2 बट इसका पॉजिटिव लेंगे हम तो 2 हो जाएगा -1, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे आएंगे -1, माइनस टी आई है -1, क्योंकि टी आई 1 है तो माइनस टी आई -1 है, तो ये भी इसमें आएगा 2 डी आई -1, 2 इंटू 1 क्योंकि मॉड है तो -1 का 1 ले लेंगे, -1 तो 1 हो जाएगा ये। नाउ यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है कि डी आई -1 है और ये टी आई क्या है 0 है। तो अगर हम ये चेक करें तो डी आई लेस देन और इक्वल टू -0 और
लेस देन 0, तो ये इसमें नहीं आ रहा है, ये आ रहा है अदरवाइज में ti प्लस डी आई। तो ti प्लस डी आई करेंगे तो यहाँ पे di का मॉड लेना है, तो 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 32 भी अदरवाइज में आ रहा है, तो ti प्लस डी आई ये भी हो जाएगा 32। इस तरीके से हमने xi को फाइंड कर लिया। बाकी सभी टेस्ट कर देते हैं। अब ये j इक्वल टू 8 का ये है कि हम 2 ये 8 को हम एक साथ लेंगे। क्वेश्चन में दे सकता है j इक्वल टू 16, तो हमको सारे को एक साथ लेके और उसका कोड वर्ड फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो इस तरीके से। तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि हमें या इनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कितने बिट का हमें यूज करना है, बट हम जनरली 8 बिट का यूज करते हैं, तो हम 8 बिट का यूज करेंगे। तो बस लास्ट स्टेप हमें राइस कोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन सबको वो फाइंड करना है, वन स्प्लिट सिंपल ऑप्शन है। तो पहले ये इन नंबर्स को हम 8 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे। इन चारों का फाइंड करते हैं, बाकी सब ऐसे ही आगे फाइंड कर लेंगे। तो 32 4 8 16 32 5, ये अगर हम 8 बिट में इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो इतना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। ठीक, ये अभी 4 नंबर्स हैं, बाकी इसके बाद हम इन 4 नंबर्स का करेंगे। एक्चुअली इन सब का साथ में कर लेते हैं, फर्स्ट ब्लॉक का साथ में कर लेते हैं। 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 5 6। ठीक, वन स्प्लिट ऑप्शन का यूज करना, तो हम क्या करेंगे, जो LSB 1 बिट है हम वो ले लेंगे। पहले 0, सबका 0 ही है। उसके बाद इसको छोड़ के जितने भी हैं उसका बाइनरी में यूनरी करेंगे। तो इसका बाइनरी का वैल्यू कितना हो रहा है, 2 4 8 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो 8 zeros फॉलोड बाई 1। उस तरीके से इसकी वैल्यू 1 है तो 1 0 फॉलोड बाई 1। इसकी वैल्यू 2 है तो 2 zeros फॉलोड बाई 1। इसकी वैल्यू 4 है तो 4 zeros फॉलोड बाई 1। तो ये जो है ये हमारा राइस कोड है। फिर इसको फाइंड कर लेते हैं, वन स्प्लिट फंक्शन है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 0 0। इसको छोड़ के इसकी वैल्यू 1 है तो 0 1 1 है 0 1, फिर 1 है 0 1, फिर 1 है 0 1। इस तरीके से ये हमारा राइस कोड हो गया फर्स्ट ब्लॉक का। ऐसे ही हम सेकेंड ब्लॉक का फाइंड करेंगे। सेकेंड ब्लॉक है 0 0 0 1 2 0 2 1। इसको भी 8 बिट में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। इसको हम वन स्प्लिट ऑप्शन से कोड करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और बाकी बचे 0, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। हमने देखा है इसको 0 को यूनिकोड में कन्वर्ट करना। इसका भी सेम होगा क्योंकि 0 है, इसका भी सेम होगा। ये है 1 और 0 का फिर से 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 0 0 0 1 होंगे और इसको छोड़ के बाकी 1 है, तो 0 1 0 है तो 1 1 है 0 1 और 0 है तो इसका भी 1। तो इस तरीके से हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं, तो 8 राइस कोड निकल जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।
Hi friends, let's see the Tunstall code. Okay, so here is a formula for finding the number of iterations. So n plus k n minus 1 is less than or equal to 2 to the power n. This equation or formula is used to find the number of iterations that will be used to find the Tunstall code. Okay, so where n is the bits required for Tunstall code, okay, n is the size of the source, that is how many alphabets are present, number of alphabets or letters, okay, and k is the number of iterations that we have to find, that is how many how many number of times we iterate it to find the Tunstall code. Okay, so we will discuss the Tunstall code by considering an example. Okay, so we will write this here: n plus k n minus 1 is less than or equal to 2 to the power n. Okay, remember that this is the size of the source, this is the number of iteration, and this is the number of bits that will be needed for the or required for the Tunstall code. Okay, so let's see an example. Suppose there are three letters A1, A2, A3 having probabilities 0.7, 0.2 and 0.1. okay, these are the letters and these are the probability. So we have to find the code word for this. Okay, Tunstall code for this. Okay, so first we have to find the number of iterations. Okay, so here we can see that n equal to 3. Okay, because the number of the source letter are 3, and we in the example it will be given that how many bits are required for the Tunstall code. So we need here 3 bits for Tunstall code, means that we want to generate 3-bit Tunstall code. Okay, we want to generate 3-bit Tunstall code. Okay, so let's start. Yeah, the first step is let's find the value of k. Okay, so n is 3 plus k, here 3 minus 1 is less than or equal to 2 to the power 3, that is 3 plus 2k is less than or equal to 8. So 2k is less than or equal to 8 minus 3, that is 5, and k is less than or equal to 2.5. okay, so k must be equal to 2 because k is less than or equal to 2.5. okay, where k is natural number, so k will be equal to 2. okay, so we need to iterate 2 times to find the Tunstall code. okay, so here we have found out that k equal to 2. okay, so let's this is the first iteration. okay, so here is the letter and here is the probability.
Okay, so in the first and other that is second and third iterations and so on iterations, we will find that which of the letter is having highest probability. Okay, and we then remove this letter and probability combination and write other letters and probability. This is the first step in the first iteration. So we will remove this the letter having highest probability, we remove it. Okay, so the remaining letters and probabilities will be A2 having probability 0.2 and A3 having probability 0.1. Okay, and then we will multiply this letter to all the letters of this sequence. Okay, so we will multiply A1 with A1 itself, then A1 the letter having highest probability A1 with A2, and then A1 with A3. Okay, so what will be the probability of A1 A1, A1 A2 and A1 A3? So the probability of A1 is A1 means 0.7 into 0.7, that is 0.49. And what is the probability of A1 A2? A1 A2 means 0.14. Here this is 0.7 into 0.7. This 0.7 is for A1 and this 0.7 is for other A1, and this is 0.7 into 0.2, 0.2 for A2, and here A1 and A3, that is 0.07. Okay, here 0.7 for A1 and 0.1 for A3. Okay, so in the first iteration we found this, and again we will and in the second iteration we will find the letter having highest probability and we remove that letter, and then we copy all the letters and probability combination without this, and then we will multiply this highest probability letter with all these letters, and again we write this, and we have to go to only two iterations that we have already find out. Okay, so let's see the second iteration here. Okay, so here's the letter, and in the here k equal to 2 means in the second iteration itself we will get the code word. Okay, so here we will not write letter and probability, here we will write letter and code word. Okay, so here we can see that this is the letter having highest probability, so we remove this letter and copy all the remaining letters, that is A2 and A3. We will not write probability, and then A1 A2 and then A1 A3, and then after copy the remaining letters we will multiply this letter having highest probability to all the initial sequences of the letters, that is A1 A1, this A1 A1 to A1, that is A1 A1 A1, A1 A1 to A2, that is A1 A1 A2, and again A1 A1 to A3, A1 A1 to A3. Okay, and now for these sequences we write code word. So we need a 3-bit Tunstall code, so we will write the code word in 3-bit. So 000, 001, 010, 011, 100, 101 and 110. So in Tunstall code all the code words is of same length. Okay, so this is the procedure of finding the Tunstall code. Okay, so thank you friends.
और यहाँ पे एफ एक्स ऑफ एक्स एन है, तो एक्स एन 1 है, तो एफ एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एल ज़ीरो क्या है 0 प्लस u1 u0 कितना है 1, L0 0 और इंटू एफ एक्स ऑफ 0 क्या होगा 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0। ये सारा टर्म सेम है, तो 0 + 1 - 0 और एफ एक्स ऑफ 1 है 0.8, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो अब इसको हम अपडेट कर देंगे। तो L ऑफ 1 कितना आया है 0 और U ऑफ 1 आया है 0.8। ठीक, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पे जाएंगे। तो सेकंड 3 है सीक्वेंस, इसका यूज करके हम L2 और U2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो L2 और U2 फाइंड करना है। तो बेसिकली इसके फॉर्मूला में क्या लिखना है, अगर L2 फाइंड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा L1 + U1 - L1 और एफ एक्स ऑफ ये जो 3 होगा उसका -1 मीन्स 2। ठीक, तो L ऑफ 1 क्या है 0, फिर प्लस U ऑफ 1 कितना है 0.8 माइनस L ऑफ 1 0 और यहाँ पे एफ एक्स xn -1 है, तो xn यहाँ पे 3 है, 3 - 1 2, एफ एक्स ऑफ 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये टर्म तो सारे सेम ही रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा, एफ एक्स ऑफ टर्म 3 है, यहाँ पे xn ही होता है, तो ये हो जाएगा 3। तो हमें 3 का मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो ये 2 3 हो जाएगा, अगर 4 है तो 3 4 हो जाएगा। जैसे 1 था तो 0 1 था, ये 2 का जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू ये एफ एक्स ऑफ 2 0.82। ठीक, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू एफ एक्स ऑफ 3 1, तो इसका आंसर 0.8 आएगा। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 0.656। ठीक, तो फर्दर हमारा लोअर और अपर अपडेट हो गया है। ठीक है, तो इसको अपडेट कर देते हैं। .656 है एंड अपर क्या है 0.8। ठीक, अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो हमने थर्ड का कर लिया है फाइंड, अब हम सेकंड फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे L3 फाइंड करेंगे, तो क्या होगा L2 मीन्स 0.656 प्लस U2 0.8 माइनस अगेन L2 0.656 और एफ एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट 2 है तो एफ एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। वैसे ही L ऑफ 4 तो 0.656, ये तो सेम ही है फॉर्मूले में, और ये इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ एफ एक्स ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक, तो या इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ एक्स 1 की वैल्यू कितनी है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 0.8 से और एफ एक्स ऑफ 2 इसको रिप्लेस कर देंगे 0.82 से, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि टाइम कम लगे, 0.7712 हो जाएगा ये। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.77408 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। ठीक, तो ये 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट के लिए फाइंड करेंगे 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे L4 के लिए, तो L4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे L3 हो जाएगा 0.7712 प्लस ये अपर 0.77408 माइनस अगेन 0.7712 और यहाँ पे एफ एक्स ऑफ 0 होगा, तो एफ एक्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल और तो ये बचेगा 0.7712। ठीक, और जब u ऑफ 4 निकालेंगे तो ये सारा टर्म तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स ऑफ 1 हो जाएगा तो 0.8, तो इसका जो आंसर आएगा U4 का
वो हो जाएगा 0.773504। ठीक है, तो हमने सारा सीक्वेंस को ट्रैवर्स कर लिया है। अब जो हमारा टैग आएगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, जो टैग होगा वो इसका एवरेज होगा 0.7712 प्लस 0.7730504 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर आ जाएगा 0.772352। ठीक है, ये हमारा टैग हो जाएगा। तो टैग का आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम डिसिफर करेंगे इसको तो इसी टैग का यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस 1321 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम टैग ले रहे हैं 0.772352। ठीक है, अब ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम टैग को डिसिफर करेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सीक्वेंस नहीं होगा हमारे पास, टैग होगा और ये सारे प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर लेंगे और इस प्रोबेबिलिटीज का यूज करके हम सीक्वेंस निकालेंगे, जो जिसका अपोजिट हमने किया था वो अब करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और बहुत ईजी स्टेप है और सेम स्टेप बार बार परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसमें हम फिर से L00 और U0 को 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, और फिर से वही वाला सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L1 पे और U1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, L00 है प्लस U01 है, L00 है और यहाँ पे Fx xn माइनस 1 है। ठीक, यहाँ पे भी सेम है, ये यहाँ पे Fx xn माइनस, यहाँ पे सिर्फ xn है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये हमें दिया रहेगा और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ इतना Fx xn माइनस 1 और ये हो जाएगा Fx xn। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो अपर और लोअर है वो इस जो टैग है वो अपर और लोअर के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि xn को पहले 1 लेंगे। ठीक है, जब xn को 1 लिया है तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 लिया है तो ये हो जाएगा 0, fx ऑफ 0, fx ऑफ 0 हो जाएगा 0 और जो U1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो fx ऑफ 1 दैट इज 0.8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टैग है वो इसके बीच में है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सीक्वेंस आएगा आंसर में वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे L2 और U2 करेंगे और इसमें L0 और U0 की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, जिससे आंसर आया रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये टर्म आएगा, उस टर्म में हम x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ही करके पुट करते जाएंगे और आंसर हमारा वो होगा जिसके रेंज में हमारा टैग आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह परफॉर्म करेंगे तो हम जब xn की वैल्यू जब 3 लेंगे तो जो हमारा टैग होगा, जो हमारा ये रेंज होगा L और U का, वो उसके अंदर टैग आएगा, टैग बाकी सबके रेंज में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही इसके बाद वाले का स्टेप 3 आंसर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो सेम बेसिक स्टेप अप्लाई करने हैं बार बार, तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड पे जनरेट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अर्थमेटिक कोडिंग का जो मेन स्टेप है बाइनरी कोडिंग फाइंड करना, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 स्टेप थे, पहले टैग फाइंड करना था फिर कोड फाइंड करना था। तो टैग हम फाइंड करने के दोनों मेथड देख लिए हैं, अब हम कोड फाइंड करेंगे, बाइनरी कोड। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, डिक्शनरी टेक्निक देखते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा गिवन होता है उसके स्ट्रक्चर का यूज करके हम कंप्रेशन करते हैं। सपोज डेटा दिया हुआ है A B C D E A B,
इस तरीके से। तो इसमें हम एक डिक्शनरी का यूज करते हैं। इसमें जो फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग जो भी पैटर्न होते हैं उसको हम डिक्शनरी में लिख लेते हैं और इसका इंडेक्स हम बनाते हैं। सपोज 00 है तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग पैटर्न्स हैं तो इनको हम ना सेंड करके इसके इंडेक्स को सेंड करते हैं, तो इससे हमें कंप्रेशन मिलता है। और ये कंप्रेस कैसे करता है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली कंप्रेशन होता कैसे है। मोस्टली ये यूज़फुल तब होता है जब ये जो पैटर्न्स हैं वो स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स हो और फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग हो। मीन्स कि इनके बीच का डिफरेंस कम हो, तो ये मोस्टली यूज़फुल होते हैं। अगर बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो यूज़फुल तो हैं, बट सबसे ज़्यादा इनकी इफ़िशियंसी तब होती है जब ये पैटर्न स्मॉल हो, छोटे पैटर्न, और ये बार बार आए हों। अगर ये यूज़फुल नहीं है, सपोज अगर ये पैटर्न बहुत बड़ा हो या फिर ये पैटर्न तो छोटा हो बट ये बहुत देरी के बाद आया हो, तो इस तरीके से इसमें हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ में यूज करेंगे। अभी हम LZ77 जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ ऐसा ही क्यों होता है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं होता है। तो जब इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड फर्स्ट स्टैटिक होता है एंड सेकेंड एडेप्टिव होता है। स्टैटिक में क्या होता है कि सोर्स के बारे में हमें पहले से पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और इसमें क्या है कि अगर अगर ये स्टैटिक का नाम स्टैटिक इसलिए है कि अगर इसमें सोर्स में कुछ चेंज होता है तो हम कंप्रेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है कि सोर्स के बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है तो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये हमारे पैटर्न्स हैं, इनको हम इस कोड से सपोज इसको हम इनकोड करेंगे, ये हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं। बट एडेप्टिव में क्या होता है कि हमें सोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही सोर्स में कुछ चेंज होता है हम कंप्रेशन में भी चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टैटिक और एडेप्टिव काम करते हैं। तो स्टैटिक में हम डायग्राम कोडिंग पढ़ेंगे और एडेप्टिव में LZ77, LZ78 और LZW पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, डायग्राम कोडिंग देखते हैं। तो हमें पता है कि ये एक स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि सोर्स के बारे में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन है पहले से कि जो भी हमारा सोर्स है जो कि डेटा जनरेट कर रहा है उसका अल्फ़ाबेट ABCDE है। मीन्स वो जो भी डेटा जो भी सीक्वेंस जनरेट कर रहा है उसमें सिर्फ ABCDE अल्फ़ाबेट ही आएंगे, मीन्स FGH ये सब नहीं आने वाला है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन है कि फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग पैटर्न सोर्स में से क्या है। मतलब कि तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम एक डिक्शनरी बना लेंगे। तो उसमें ABCDE तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है तो इसका हम यूज करेंगे। बट जो भी सोर्स का इंफॉर्मेशन है इससे हमें ये पता है कि जो सोर्स जो भी डेटा जनरेट कर रहा है उसमें से AB, AC और AD फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, ये हमें पता है। इसके बाद अगर हमें और ऐड करना है, जैसे ABC अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें 3 बिट में हमें काम नहीं चलेगा, तो हमें ये 4 बिट जाना पड़ेगा। इसके बाद ये 15 तक जाएगा 4 बिट। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो भी पैटर्न्स हैं वो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं उन्हीं को लिखना है, सबको नहीं लिखना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो कंप्रेशन की इफिशियंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर हम दो यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये 3 बिट में हमारा काम चल जा रहा है, बट अगर हम और ज़्यादा इसके पैटर्न अगर बढ़ाएंगे तो ये 4 बिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से सोर्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ये सोर्स AB, AC और AD जनरेट कर रहा है, फ्रिक्वेंटली जनरेट कर रहा है AB, AC और AD। ठीक,
तो ये स्टैटिक टेक्निक है, तो इस इंफॉर्मेशन से हमने डिक्शनरी बना लिया है और ये इसका अल्फ़ाबेट है। तो एक एग्जांपल सीक्वेंस लेते हैं कि सपोज ये सोर्स सीक्वेंस जनरेट किया है ए बी ई ए सी ए डी ए बी ई ए, तो इसको किस तरीके से हम इनकोड करेंगे और हम अभी देखेंगे कि कैसे ये डेटा को हम कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये 11 अल्फ़ाबेट्स हैं, 11 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो कंपलसरी अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको कंप्रेस ना करें तो इसको हम कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 11 है तो हमें मिनिमम 4 बिट यूज करना पड़ेगा पर लेटर, 4 बिट पर लेटर हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 8 तक होता तो हम 3 बिट से हो जाता, बट 8 से 15 के 16 से कम है, तो इसलिए हम 4 बिट का यूज करेंगे। तो अगर हम पर लेटर 4 बिट यूज कर रहे हैं तो 11 लेटर्स है, तो इस तरीके से अगर हम इसको कंप्रेस ना करें तो इसके लिए हमें 44 बिट की जरूरत पड़ेगी। बट हम देखते हैं कि अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं डायग्राम कोडिंग से तो क्या ये बिट कम होती हैं। तो इसमें कंप्रेशन की टेक्निक क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो लेटर है वो 2 है, जिसका पैटर्न है हमारे पास। तो हम इसको चेक करेंगे 2 2 करके, 2 को एक साथ लेंगे, अगर वो पैटर्न मैच कर रहा है तो उसका कोड लिखेंगे, अगर पैटर्न मैच नहीं कर रहा है तो ए बी सी डी ई में से कोई ना कोई मैच जरूर करेगा, क्योंकि यही हमारा अल्फाबेट है। इसके अलावा सोर्स और कुछ जनरेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम 2 को देखते हैं, ए बी है हमारे पास, तो ए बी इन कोड हो जाएगा 101, ए बी हो गया। इसके बाद हम ई चेक करेंगे, बट ई हमारे पास है नहीं, जब 2 नहीं है साथ में तो सिर्फ हम ई को ले लेंगे, ई का कोड है 100। इसके बाद फिर से 2 लेंगे, ए सी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 110। फिर ए डी भी है 111, फिर ए बी 101, फिर ई है, ई ए साथ में नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ ई को लेंगे 100 और फिर ए 000। इस तरीके से हम इसको इनकोड करेंगे। जब हम इसको इनकोड कर रहे हैं तो 21 बिट्स आ रहे हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने 44 बिट्स को 21 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हम 50% से भी ज़्यादा हमने कंप्रेशन अचीव कर लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी डिक्शनरी में हमने पैटर्न बनाए हैं ए बी ए सी, वो फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग है। ये जैसे ए बी ए डी ए बी ए सी, ये फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन हमें पहले पता थी कि ये जो पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा ऑकर हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको पहले ही डिक्शनरी में लिख लिया था। यहाँ पे ये भी ऑकर हो रहा है, बट सिर्फ ये सिंगल पैटर्न अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे हमें 4 बिट लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये सारे 4 बिट के हो जाते। तो ये जो है ए बी है सिंगल, इसको हम 4 बिट में इनकोड करना पड़ता, जो कि हम 3 बिट में इनकोड किए हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका साइज बड़ा हो जाता और कंप्रेशन सपोज 30 बिट आता, तो इससे क्या होगा कि कंप्रेशन की इफिशियंसी कम होती। तो इसलिए हम सब ध्यान में देके इसको डिक्शनरी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये इसके बाद हम अडेप्टिव टेक्निक देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, LZ77 पढ़ते हैं। ये एक अडेप्टिव डिक्शनरी टेक्निक है। इसमें स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हैं। सपोज ये विंडो है, विंडो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्च बफर एंड लुक अहेड बफर। पहले से हम विंडो का साइज, सर्च बफर और लुक अहेड बफर का साइज फिक्स कर देते हैं। सर्च बफर में वो सीक्वेंस होते हैं जो कि इनकोड हो चुके होते हैं पहले ही, और लुक अहेड बफर में वो सीक्वेंस होते हैं जो इनकोड नहीं हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी लॉन्गेस्ट पैटर्न मैच करता है उसके लिए हम एक ट्रिपल सेंड करते हैं, OLC, जिसमें कि O ऑफसेट है, L लेंथ है एंड C कोड वर्ड है। ऑफसेट क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई पैटर्न मैच हुआ है, तो जो इसका डिस्टेंस होता है पैटर्न मैचिंग का लुक एट बफर से, पैटर्न का स्टार्टिंग जो लेटर होता है उसका जो
डिस्टेंस होता है टोटल, वो ऑफसेट होता है। जो मैचिंग हुआ है, कितना बड़ा मैच हुआ है, उसका लेंथ जो होता है वो एल होता है लेंथ। और इसके बाद मैचिंग के बाद जो भी लेटर है, जो भी लेटर बचता है, उसका कोड वर्ड होता है सी। तो इसके इसके इंकोडिंग का हम एग्जांपल लेते हैं और इसको इंकोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसको हमने सपोज किया है कि विंडो का साइज 13 है, इसमें सर्च बफर का साइज 7 है एंड लुकआउट बफर का साइज 6 है। जब हम स्टार्ट करेंगे इसको हमें इनकोड करना है इस सीक्वेंस को, तो हम लुकआउट बफर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर्च बफर क्या है कि जो भी इनकोडेड सीक्वेंस हो चुका है उसको रखते हैं सर्च बफर में, बट अभी कुछ भी इनकोड नहीं हुआ है तो इसलिए। और लुकआउट बफर होता है कि जिसमें हम इनकोड नहीं किए होते हैं, तो हमने अभी कुछ भी इनकोड नहीं किया है, इसलिए हम लुकआउट बफर से स्टार्ट करेंगे। तो 6 ही हमें लिखना है, तो CABRAC, सिर्फ 6 यहाँ लिखेंगे, बाकी बाहर ADABRARRARRAD। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो जो ट्रिपल हमें बनाना है वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ट्रिपल क्या बनेगा, यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हुआ है तो ऑफसेट इसका 0 हो जाएगा। ऑफसेट इसका ये यहाँ पे O है, ये 0 है, ऑफसेट यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। मैच कोई है ही नहीं तो इसका लेंथ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैच कोई नहीं है। और जो कोडवर्ड है, मैच के बाद जो भी लेटर बचता है सी, तो उसका कोडवर्ड होता है, इसको हम सेट कर देंगे। सपोज सी का कोडवर्ड 000 है, तो हम यहाँ पे 0,0,0,000 सेंड कर देंगे। इसके बाद जो भी कोडवर्ड हमने लिखा है, जो भी कोडवर्ड लिखा है उतना हम स्लाइड कर देंगे विंडो को। मीन्स हमने कोडवर्ड सी का लिखा है तो सी को हम स्लाइड कर देंगे, बाकी को 1 स्टेप से हम स्लाइड कर देंगे। ABRACA, यहाँ से A आ जाएगा, बाकी हम ऐसे ही BRARR। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और मैच कराएंगे तो फर्स्ट को मैच कराएंगे, फर्स्ट कहीं भी मैच कर रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो ऑफसेट 0 हो जाएगा, लेंथ भी 0 हो जाएगा। और मैच नहीं करने का यहाँ पे कोडवर्ड होगा वो A होगा, ये इसका है कोडवर्ड। जब इसका A हो जाएगा तो यहाँ पे कोडवर्ड A है तो A तक हम शिफ्ट कर लेंगे, तो CA, बाकी को हम वैसे ही लिख देंगे ABRA। यहाँ B है, यहाँ पे CA है, यहाँ भी कोई मैच नहीं है, फिर से 0 0 एंड कोड ऑफ ये B। यहाँ पे हो गया। फिर कोड ऑफ B है तो कोड ऑफ B तक हम शिफ्ट कर देंगे, CAB, बाकी हम वैसे ही लिख देंगे RACADA। 6 यहाँ पे होने चाहिए, बाकी BRA। नाउ फिर यहाँ पे R है, यहाँ पे कोई भी R नहीं है, तो फिर से इसका कोडवर्ड 0 हो जाएगा और CFR हो जाएगा। फिर हम R तक शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमें मैच मिल रहा है, यहाँ फर्स्ट A है, यहाँ पे A है। जब मैच मिल रहा है तो हम फाइंड करेंगे कि मैच का लेंथ क्या है। तो लेंथ एक तो मिल रहा है, A से मैच कर रहा है, लेंथ 1 है। अगर हम फिर हम आगे चेक करेंगे लेंथ 2 या 3 तो नहीं है, तो जो हाईएस्ट लेंथ होगा हम वही लेंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस में AB है, बट यहाँ पे सीक्वेंस में AC है, तो 2 लेंथ मैच नहीं कर रहा है, बस एक ही लेंथ मैच कर रहा है। तो इसका ऑफसेट हो जाएगा, ऑफसेट क्या होता है, जो मैच होता है उसका लेंथ 1 2 3, यहाँ से लुकआउट बफर से 1 2 3, तो इसका ऑफसेट 3 है। और मैच का लेंथ सिर्फ 1 है, क्योंकि सिर्फ A मैच हुआ है 1, और A के बाद क्या मैच नहीं किया है तो कोड ऑफ C हम सेंड कर देंगे। कोड ऑफ C है तो हम C तक इसको शिफ्ट कर लेंगे। अभी तक हमने 1 1 शिफ्ट किया था, बट यहाँ पे हम 2 शिफ्ट करेंगे।
क्योंकि सी का कोड वर्ड हमने सेंड कर दिया है तो सी भी इनकोडेड में आ जाएगा। उसके बाद जो बचा ए डी ए बी आर ए आर आर ए आर आर। ना यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अगर ऑफसेट अगर एक से ज़्यादा है तो जिसका भी मैचिंग लेंथ बड़ा होता है वो वाला हम ऑफसेट लेंगे, और मैचिंग लेंथ भी अगर इक्वल है तो जो कम ऑफसेट होगा उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे दो ऑफसेट आ रहे हैं, 1 2 2 पे एंड 5 पे। बट तो अब लेंथ फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ए बी है बट यहाँ पे ए डी है, तो इसका लेंथ तो एक ही है। फिर यहाँ पे ए सी है और ए डी है, यहाँ भी लेंथ एक ही है। जब लेंथ सेम है तो हम वो लेंगे, वो वो वाला पैटर्न लेंगे जिसका ऑफसेट मिनिमम होगा। तो ये वाला पैटर्न का ऑफसेट 2 है, इसका ऑफसेट 5 है, तो हम ये लेंगे 2 हो जाएगा ऑफसेट। मैच कितना किया है? सिर्फ 1 ए मैच किया है, तो कोड वर्ड ऑफ डी हमें सेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब कोड वर्ड डी हमने सेंड किया है, इसके बाद तो हम डी तक यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जब डी तक कॉपी करेंगे तो ये सी ए बाहर आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ इसका लेंथ 7 है तो सिर्फ सी बाहर आएगा। ए बी आर ए सी बी आर ए सी ए डी। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। क्योंकि इसका लेंथ 7 है तो मैक्सिमम यहाँ पे 7th हम ले सकते हैं। डी तक हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, तो ए बी आर ए बी आर आर आर, क्योंकि इसका लेंथ 6 है, ए आर आर ए डी। ये इसका सी है तो इसका कोड वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ यहाँ पे ए है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ मैच करता है। तो यहाँ मैच किया, यहाँ मैच किया, यहाँ मैच किया, तो जिसका भी पैटर्न लॉन्गेस्ट होगा उसका हम लेंगे। अगर पैटर्न सेम होगा तो सिर्फ हम ऑफसेट मिनिमम ऑफसेट ले लेंगे। अगर इसका हम चेक करें तो ए बी आर ए 4 मैच कर रहा है। अगर हम इसका लें तो ए सी सिर्फ ए मैच कर रहा है, ए डी सिर्फ ए मैच कर रहा है, ये पूरा मैच कर रहा है, तो इसलिए हम इसको लेंगे। तो जो इसका ऑफसेट है 1 2 3 4 5 6 7 इसका ऑफसेट हो जाएगा। और मैच कितना किया है? 4 मैच किया है, और ए बी आर ए तक मैच किया है, तो कोड ऑफ हम आर सेंड कर देंगे, और पूरा यहाँ तक आर तक हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सी ए बी आर ए सी ए डी ए बी आर ए आर। यहाँ पे सी होगा, सी ए बी आर ए सी यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 7 ही होनी चाहिए, इसलिए ए डी ए बी आर ए आर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो भी है यहाँ पे आर आर ए डी 6 यहाँ पे बचे हुए हैं। फिर से हम मैच कराएंगे। यहाँ पे आर है, यहाँ पे 2 जगह आर है, तो अगर यहाँ फर्स्ट वाले को देखें हम तो आर है, आर मैच कर रहा है, आर के बाद आर है, बट यहाँ पे आर के बाद ए है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंगल ही मैच कर रहा है। इसको देखते हैं, आर है, फिर ए है, फिर से आर है, फिर आर है, फिर ए है, 5 मैच कर रहा है ये पूरा। आर ये, फिर ये 5 मैच कर रहा है। तो ऑफसेट इसका क्या है? 1 2 3 है ऑफसेट, लेंथ है 5, और मैच करने के बाद जो बच रहा है वो कोड वर्ड ऑफ डी बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, डी तक इसको शिफ्ट कर लेंगे। जब डी तक शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो सारा जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिया है वो सारा आ जाएगा, जबकि जो कि लास्ट में ये वाला डी आएगा। तो जब लुक अहेड में जब कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब कि सारे इनकोड हो चुके हैं, जो इनकोड नहीं हुए हैं वो अब नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको इनकोड कर लिया है, और ये हमारे इनकोडेड ये ट्रिपल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको हम इस सेम ट्रिपल को लेके डिकोड करेंगे और चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस दोबारा
आ रहा है कि नहीं। इसके हम लिमिटेशंस देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि अगर जो भी पैटर्न है अगर उसका लेंथ सर्च बफर से ज़्यादा है, सपोज कोई पैटर्न है जिसका लेंथ 7 से ज़्यादा है, तो ये उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो भी मैक्सिमम है पैटर्न मैचिंग का वो 7 ही है। तो फर्स्ट इसका लिमिटेशन तो ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन ये है कि अगर पैटर्न सपोज सर्च बफर से कम ही है, सपोज पैटर्न 5 लेंथ का है, बट वो पैटर्न क्या है कि बहुत दूर दूर है, जैसे हमने बेसिक में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ये इसका लिमिटेशन है। सपोज यहाँ पे कोई पैटर्न है 5 और फिर ये पैटर्न यहाँ लुक अहेड में ना होके कहीं और है, यहाँ पे है पैटर्न, तो फिर इसको भी हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे इससे। तो ये दो इसके लिमिटेशंस हैं। इसके बाद हम इसका डिकोडिंग देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, LZ77 का डिकोडिंग देखते हैं। तो जो हमने इनकोड किया था ये सारे ट्रिपल हैं उसके, तो हम इसके बाद इसको डिकोड करके चेक करते हैं कि जो इनिशियल सीक्वेंस था वही आता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो भी 0 ऑफसेट हैं उनको उनका जो कोडवर्ड है डायरेक्ट जो वो सिंबल्स हैं वो डायरेक्टली हम लिख देंगे। जैसे फर्स्ट में C हो जाएगा, देन CA, CAB, CABR। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हुआ है तो जो भी कोडवर्ड है उसका जो सिंबल है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो जो बीच वाला सिंबल है जो कि लॉन्गेस्ट मैच है, जब हम नया लेंगे तो ये सिंबल +1 हम बॉक्स ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 था तो हमने 1 बॉक्स ऐड किया था, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 2 बॉक्स ऐड करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ 5, क्योंकि 4 है यहाँ पे 6 बॉक्स ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इजी हो जाएगा करना। तो यहाँ पे 1 है तो हम 2 बॉक्स पहले ही ऐड कर दे रहे हैं। ये जो है उसको हम सेम पहले कॉपी कर देंगे, फिर 2 बॉक्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या है कि थर्ड ये 3 जो था वो ऑफसेट था, मतलब कि थर्ड पे मैच हुआ था। तो 1 2 3 थर्ड पे मैच हुआ था, तो ए को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, उसके बाद उसका कोडवर्ड है वो लिख देंगे C। यहाँ पे थर्ड पे मैच हुआ था तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो इसलिए हम फिर से 2 बॉक्स ऐड कर देंगे। तो जो ये है उसको हम कॉपी कर देंगे ऐसे ही एज इट इज, 2 बॉक्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या है कि ऑफसेट सेकंड है और सेकंड पे ये लेंथ ऑफ मैच है, तो मैच सिर्फ एक ही किया था तो सिर्फ हमने ए को यहाँ पे कॉपी किया था, फिर C लिख दिया था। वैसे ही यहाँ पे मैच सिर्फ एक ही है और सेकंड पे है, तो सेकंड है A 1 2, सेकंड है A, तो फिर इसको हम कॉपी कर देंगे A, क्योंकि एक ही कॉपी करेंगे क्योंकि मैच एक ही है, और फिर से ये कोड ऑफ D है तो D सिंबल हम लिख देंगे। यहाँ पे 4 है तो हम 5 एक्स्ट्रा बॉक्स बना लेंगे, बाकी सब वो कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना लिए हमने। ये 7 से मैच किया है और 4 कॉपी करना है, 4 सिंबल कॉपी करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम ये 4 कॉपी कर देंगे, A B R A, और फिर से जो इसका कोडवर्ड है R इसको लिख देंगे। इस 4 को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है क्योंकि ये मैच कर रहा था 7th पोजीशन पे और इसका लेंथ 4 था, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है लेंथ तो हम और 6 बॉक्स ऐड कर देंगे। इसको छोटा छोटा लिख रहे हैं CAB, ये हमने कॉपी कर दिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है कि थर्ड ऑफसेट है और 5 मैच कराना है, तो यहाँ पे 1 2 3 है और 5 मैच कराना है। तो फर्स्ट वाले को हम लिख देंगे R, फिर सेकेंड वाले को A, फिर थर्ड वाले को R, फिर फोर्थ वाले को R, फिर फिफ्थ वाले को A। इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 को यहाँ पे 5 मैच कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। उसके बाद जो बचा है वो है D। तो हम ये देखेंगे तो ये हमारा डिकोडेड सीक्वेंस हो जाएगा।
तो ये जो सीक्वेंस है वो इनिशियल सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को पहले हमने इनकोड किया ट्रिपल में, फिर इस ट्रिपल का यूज करके हमने इसको वापस डिकोड कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, LZ78 इनकोडिंग देखते हैं। इसमें हम डबल का यूज़ करते हैं इनकोड करने के लिए आई एंड सी, जबकि LZ77 में हमने ट्रिपल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आई इंडेक्स है और ये सी कोडवर्ड है। तो ये सीक्वेंस को हम इनकोड करके देखते हैं एक एग्जाम्पल की तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, तो चेक करेंगे कि ये डिक्शनरी में है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसकी हम एंट्री ऐड कर देंगे डिक्शनरी में। तो ए डिक्शनरी में नहीं है तो इसका हम ऐड कर देंगे एंट्री ए, इंडेक्स इसका 1 ले लेंगे, और इसका जो इनकोडेड आउटपुट होगा वो यहाँ पे इंडेक्स इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी इससे मैच नहीं किया है। और फिर कोड वर्ड ऑफ ए हम सेंड कर देंगे। इसके बाद हम बी को चेक करेंगे, बी भी अभी डिक्शनरी में नहीं है, तो फिर से हम इसका एंट्री बना देंगे, इसका इंडेक्स 2 ले लेंगे। ये बी भी मैच नहीं किया है, इसलिए इसका भी इंडेक्स 0 हो जाएगा एंड कोड वर्ड ऑफ बी हम सेंड कर देंगे। फिर आर, सेम आर भी नहीं आया है, अभी डिक्शनरी में नहीं है, तो इसके भी एंट्री हम ऐड कर देंगे, सेम 0 कोड वर्ड ऑफ आर। इसके बाद हम ए को देखते हैं। ए यहाँ पे डिक्शनरी में एडेड है पहले से। जब ऐड है तो हम एक लेंथ और बढ़ाएंगे, अगर ये भी मैच करेगा तो एक लेंथ और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पहले ए तो मैच कर रहा है, बट यहाँ पे ए सी अगर हम देख रहे हैं तो ए सी मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैच नहीं कर रहा है तो उसकी एंट्री हम ले लेंगे, क्योंकि टोटल एंट्री हम ले लेंगे, क्योंकि ए तो मैच कर रहा था जो कि है, बट ए सी मैच नहीं कर रहा है। जो मैच नहीं कर रहा है उसकी हम एंट्री ले लेंगे, इंडेक्स इसका 4 कर देंगे। यहाँ पे मैच क्या कर रहा था, ए मैच कर रहा था, तो ए जो एंट्री है, जो इसकी मैचिंग एंट्री है ए सी का, उसका हम इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे 1, कि फर्स्ट आई है हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कोडवर्ड ऑफ हम सी सेंड कर देंगे, क्योंकि ए पहले से था तो सी का कोडवर्ड हम सेंड किए हैं। ये अब जब ए सी का हमने एंट्री कर दिया तो ये ए सी दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ए को लेते हैं। ए हमारा ऐड है पहले से ही, तो इसलिए हम डी को भी लेंगे। ए डी नहीं है इसमें, तो ए डी की हम एंट्री इसमें ऐड कर देंगे, इंडेक्स कर देंगे 5। ए डी जो आया है पैटर्न वो ए से स्टार्ट हुआ है, मतलब ए के बाद ये मतलब ए मैच हुआ है, उसके बाद ए डी आया, तो इसलिए इसका भी इंडेक्स 1 हो जाएगा और कोडवर्ड ऑफ डी सेंड कर देंगे, जो कि मैच नहीं हुआ है। तो ए डी भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ पे ए है जो फिर से मैच कर रहा है। बी अगर साथ में देखें तो ए बी नहीं है, तो ए बी को हम ऐड कर देंगे 6, इसका इंडेक्स ले लेंगे। ये भी स्टार्ट हो रहा है ए से, तो इसका भी 1 हो जाएगा और कोडवर्ड ऑफ बी। इस तरीके से ए बी कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ पे आर है पहले से, बट अगर हम आर ए देखें तो आर ए नहीं है, तो आर ए को ऐड कर देंगे, 7 है। यहाँ पे मैचिंग आर से हुआ है तो यहाँ पे इंडेक्स 3 हो जाएगा। यहाँ से आर के बाद ए आया है, इसलिए 3 इंडेक्स ले लेंगे और सी ऑफ ए जो लास्ट पैटर्न है वो है। तो ये जो डबल्स आए हैं ये हमारे इनकोडेड आउटपुट हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डबल्स लेंगे, उसके बाद इसको डिकोड करके चेक करेंगे कि ये हमारा इनिशियल सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, LZ78 की डिकोडिंग देखते हैं। तो ये हमारा इनकोडेड आउटपुट था, ये जो हमने इनकोडिंग के लिए टेबल बनाया था। इसके बाद हम डिकोड फाइंड करेंगे कि ये अगर हमारे पास गिवन है डबल्स, तो हम इससे सीक्वेंस हमें जनरेट करना है। तो ये स्टार्टिंग के 3 जो हैं यहाँ पे 0 है, मतलब कोई भी मैच नहीं किया, तो डायरेक्ट हम कोडवर्ड ऑफ ए ले लेंगे। यहाँ भी मैच नहीं किया है तो कोडवर्ड ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ मैच नहीं किया तो कोडवर्ड ऑफ आर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट है, इंडेक्स इसका 1 है, मीन्स कि 1 का जो एंट्री है वो इसे मैच किया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसके बाद सी हो जाएगा, कोडवर्ड ऑफ सी, इसका सी का सिंबल। फिर सेकंड में 1 है इसका इंडेक्स, तो फिर से एंट्री ए हो जाएगा और कोडवर्ड ऑफ डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 मैच किया है तो ए है, कोडवर्ड ऑफ बी है। यहाँ पे 3 मैच किया है तो इसलिए आर हो जाएगा इसकी एंट्री और कोडवर्ड ऑफ ए हो जाएगा। तो इसको हम सीक्वेंस में अगर हम लिखें तो ए बी आर ए सी ए डी ए बी आर ए
अगर हम इसको मैच कराएं तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम LZ78 में डिकोडिंग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, LZW इनकोडिंग देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ABC हैं। अगर इसको स्कैन करते हुए अगर DEF या फिर कोई और भी कैरेक्टर आएगा तो इसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एडेप्टिव डिक्शनरी है। तो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि इसमें ABC है और इसका इंडेक्स हम 1 2 3 दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल एंट्री है उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ये इनिशियल है तो इसका इनकोडेड आउटपुट कुछ नहीं है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए जो है वो पहले डिक्शनरी में है, तो इसलिए हम 2 लेंगे। ए बी डिक्शनरी में नहीं है तो इसलिए हम ए बी की एंट्री ऐड कर देंगे। इसका इंडेक्स 4 हो जाएगा और जो इनकोडेड आउटपुट होगा ये ए बी ए के बाद बना हुआ है तो इसका जो इनकोडेड आउटपुट होगा वो 1 हो जाएगा। LZ78 में क्या होता था कि अगर हम ए बी को अगर हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिया तो ए बी के बाद हम ए से स्टार्ट करते थे, फिर देखना ए बी का कंप्लीट हो जाता था। बट इसमें क्या है कि ये जो है ए बी जो पैटर्न है उसका हम लास्ट वाले से फिर स्टार्ट करेंगे। हम पूरा ए बी को नहीं छोड़ेंगे। ये जो सपोज अगर मैच ए होता, यहाँ पे अगर एंट्री हम ऐड किए होते तो हम फिर ए से स्टार्ट करते, ये लास्ट वाले से। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी है तो इसलिए हम अब बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी को चेक करेंगे तो बी डिक्शनरी में है तो फिर हम बी ए को चेक करेंगे। बी ए डिक्शनरी में नहीं है तो इसको हम ऐड कर देंगे और इसका इंडेक्स ले लेंगे 5। और ये स्टार्ट हुआ है बी से तो बी का जो इंडेक्स है 2 इसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम बी ए है तो फिर ए पे जाएंगे। यहाँ पे ए डिक्शनरी में है, ए बी ये भी डिक्शनरी में है बट ए बी भी डिक्शनरी में नहीं है तो इसको हम ऐड कर देंगे। हमने ए बी को दोबारा नहीं गए क्योंकि ये पहले से था, तो ए बी भी है, इसका इंडेक्स 6 हो जाएगा। ये कहाँ से आया है, ये ए बी से आया है तो इसका इंडेक्स 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो मैच हुआ है वो ए बी हुआ है जिसका इंडेक्स 4 है, इसलिए हमने 4 लिखा है। फिर ए बी भी है तो लास्ट वाले बी पे हम जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम चेक करेंगे बी हमारा है, बी ए ये भी है, बी ए बी ये नहीं है, इसलिए हम बी ए बी ऐड कर देंगे। इंडेक्स इसका हो जाएगा 7 और बी ए से बना है ये तो इसका इंडेक्स हो जाए, इसका आउटपुट हो जाएगा 5। बी ए बी है तो हम बी पे जाएंगे। फिर हम देखेंगे बी है, बी सी ये नहीं है तो बी सी हम ऐड कर देंगे 8। बी है 2 से आया तो 2 हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे सी पे, सी है, सी ए नहीं है, सी ए हम ऐड कर देंगे और ये सी है 3 से आया है। फिर हम ए पे जाएंगे, ए है, ए भी है, ए बी ए नहीं है तो हम ए बी ए ऐड कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे ए बी ए का 10 हो जाएगा और ये आया है 4 से, तो हम फिर ए पे जाएंगे। ए बी है, ए बी भी है, ए बी बी भी है, ए बी बी ए नहीं है तो हम ए बी बी ए ऐड कर देंगे, 11 हो जाएगा। ये आया है ए बी बी से जो कि ये है, जो इसका इंडेक्स है 6, आउटपुट हो जाएगा 6। इसके बाद हम ए पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये कुछ नहीं बचा हुआ है तो इसका जो इनकोडेड आउटपुट होगा वो हो जाएगा 1 2 4 5 2 3 4 6 1। ये इसका इनकोडेड आउटपुट हो जाएगा। ये LZW क्या है कि ये बेस्ट डिक्शनरी एल्गोरिदम है। डिक्शनरी टेक्निक्स में जितने भी एल्गोरिदम्स है उसमें ये बेस्ट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जब भी इनकोड करता है तो सिंगल कैरेक्टर को ये कभी इनकोड नहीं करता है। अगर हम ये इनिशियल डिक्शनरी अगर छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमने पहले ही बना रखा है, बाकी जो भी इनकोडिंग होती है वो मिनिमम 2 कैरेक्टर्स की इनकोडिंग होती है, 2 3 4। तो इससे क्या है कि ये इस तरीके से ये बेस्ट डिक्शनरी टेक्निक है क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर को कभी इनकोड नहीं करता, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को ही इनकोड करता है। तो
इसके बाद हम ये इस इनकोडेड आउटपुट को लेके और इसको डिकोड करके देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, LZW डिकोडिंग देखते हैं। ये हमारा इनकोडेड आउटपुट था, तो इसको हमें डिकोड करना है। ये इनिशियल डिक्शनरी है 1A 2B 3C। तो यहाँ से हम डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। 1 है, 1 को डिकोड करना है। तो इनिशियल डिक्शनरी में 1 का A है। A पहले से डिक्शनरी में है, इसलिए हम इसका इंडेक्स नहीं बनाएंगे। और फिर बट इसका हम पार्शियल एंट्री ऐड करेंगे। इंडेक्स हो जाएगा 4। पार्शियल एंट्री इसलिए ऐड करेंगे कि ए तो डिक्शनरी में है, बट ए के बाद अगर बी आता है, वो भी अगर डिक्शनरी में नहीं है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम पार्शियल एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। 2 है, 2 का हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ए है, ए के बाद बी आ रहा है, तो इसकी हम एंट्री ऐड कर देंगे क्योंकि ये पहले से डिक्शनरी में नहीं है। इसका इंडेक्स हो जाएगा 4, क्योंकि जो इसका मैच हुआ है वो यहाँ से हुआ है, इंडेक्स 4 से। इसके बाद हम न्यू इंडेक्स बना देंगे 5, और यहाँ बी बी का नया पार्शियल एंट्री बना देंगे। उसके बाद 4 है, 4 इंडेक्स पे एंट्री है ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी ऐड कर देंगे। इंडेक्स हो जाएगा 5। यहाँ यहाँ पे क्या हुआ कि बी का पार्शियल एंट्री बनाएंगे, लेकिन बस हम इसका फर्स्ट वाला ऐड करेंगे, जो हो जाएगा बी ए। फिर इंडेक्स हो जाएगा 6, और फिर इसका टोटल का पार्शियल एंट्री हम बना देंगे ए बी डैश। फिर है 5, 5 भी हमारा एंट्री है, ये हो जाएगा बी ए। इसके बाद ए बी है पार्शियल एंट्री, इसका फर्स्ट वाला हम ले लेंगे बी, और ये हो जाएगा 6। फिर इंडेक्स हो जाएगा 7, और ये बी ए का नया पार्शियल एंट्री हो जाएगा। फिर 2 है बी, इसका हम बी ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 7, और ये बी ए बी हो जाएगा। बी ए पार्शियल एंट्री प्लस ये फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे एक ही है, बी हो जाएगा। फिर नया हम इंडेक्स लेंगे 8, और फिर बी की पार्शियल एंट्री कर देंगे। फिर 3 है, 3 का है सी, यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा बी सी। बी पार्शियल एंट्री को सी से हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे, फिर हो जाएगा 9। फिर सी की पार्शियल एंट्री बना देंगे। 4 है ए बी, इसका हो जाएगा 9, और सी ए हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट वाला ऐड करेंगे सी ए, ये हो जाएगा 10। फिर ए बी का हम पार्शियल एंट्री बना देंगे। फिर 6 है ए बी बी है। उसके बाद 10 हो जाएगा, और ए बी यहाँ पे ए ऐड कर देंगे। ए बी पहले नहीं है, तो इसलिए ऐड कर देंगे ए बी, सिर्फ फर्स्ट वाला ए। उसके बाद 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हम पार्शियल एंट्री ऐड कर देंगे ए बी बी डैश। फिर 1 है तो वो है ए। उसके बाद है 11 हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बी ये फर्स्ट वाला ऐड कर देंगे। ठीक, इसके इसके बाद क्या है कि यहाँ पे इसका पार्शियल एंट्री होगा, तो यहाँ पे हम ए डैश हो जाएगा। इसके बाद कुछ है नहीं। यहाँ पे हम डैश भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये एंड हो जाता है। तो ये हमारा डिकोडेड आउटपुट है। अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें तो ए बी बी ए बी सी ए बी बी ए। अगर इसको मैच कराएं तो ये बिल्कुल सेम है। थैंक यू फ्रेंड्स। की वैल्यूज है, तो हम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैंक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है आई गेस। पहले हम चेक करेंगे ये 2 ऑर्डर टेबल में है कि नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट आई एस है, ब्लैंक है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम सी सी और टी सी की वैल्यू लेके और एल यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो कंप्रेस्ड आउटपुट निकलेगा उसको हम ट्रांसमिट कर देंगे। तो यहाँ पे सी सी आई एस और ब्लैंक पे कम्युलेटिव काउंट है 1, और टोटल काउंट है इसका 2। फाइंड करेंगे। ये जो एल और यू है लेफ्ट हैंड साइड में वो नेक्स्ट वैल्यूज है, और आरएचएस में जो एल यू की वैल्यूज है वो प्रीवियस वैल्यूज है। तो एल की प्रीवियस वैल्यू 0 है, प्लस 63 माइनस 0 प्लस 1 प्लस सी सी यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0/2। इसलिए ये हमारा 0 हो जाएगा। 0
ये इंटू है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। फिर यू का फाइंड करेंगे, यहाँ सी सी है 1 डिवाइड बाई टी सी 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 64/2 31 हो जाएगा। ये है 64 डिवाइड बाई 2 32 माइनस 1 31। अगर इसको हम 6 बिट में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 51। अगर हमें 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो आगे 0 एड करेंगे। तो ट्रांसमिट डेटा क्या होगा, हम इन दोनों में एलयू में एमएसबी चेक करेंगे कितना बिट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 0 और 0 मैच कर रहा है, तो इसलिए हम 0 को ट्रांसमिट कर देंगे। फिर एल में 0 और यू में 1 अपेंड कर देंगे हम, और ये जो मैच किया है उसको हम हटा देंगे। तो जो हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एल और यू की वैल्यू ये होगी, जो कि 0 और 63 है, मतलब कि सेम है, तो इसको हम सेम ही रहने देंगे। ब्लैंक का हो गया। इसके बाद हम आते हैं टी पे। तो टी का कॉन्टेक्स्ट है इज ब्लैंक। सेकेंड ऑर्डर में चेक करेंगे, इज ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट तो है बट लेटर टी नहीं है। एक बात और है, अगर लेटर नहीं है कॉन्टेक्स्ट है तो हम स्केप को इंपोर्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे इसके लोअर ऑर्डर पे। बट अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है तो हम स्केप को इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, सीधे आ जाएंगे लोअर ऑर्डर पे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो है इसलिए हम स्केप को इंपोर्ट करेंगे। तो स्केप का कम्युलेटिव काउंट है 2, टोटल काउंट भी है 2 है। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे हमें पुट करना है, जो कि ये 63 और 0 की वैल्यू अभी भी सेम ही है, तो ये हम सेम रखते हैं इसको, क्योंकि फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। 2 है, 2 माइनस 1 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे CC2 है 2/2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको 32 हो जाएगा, ये 64/2 32, और ये हो जाएगा ये 1 64 माइनस 1 63, ये हो जाएगा 1 5 zeros, ये 6 1s। इसमें MSB में 1 मैच कर रहा है, तो 1 को हम ट्रांसमिट कर देंगे, और फिर यहाँ 0 यहाँ 1 अपेंड कर देंगे और इसको हटा देंगे। फिर से हम देख रहे हैं कि एल और यू की वैल्यू सेम है, तो हम सेम रखते हैं अभी भी। यहाँ पे हमने स्केप को इंपोर्ट कर दिया। स्केप को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल को अपडेट करेंगे। तो कि अगर फ्यूचर में सपोज अगर ये पैटर्न आता है टी का, इस ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट आता है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे टी कर देंगे, टी भी 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, और फिर स्केप होगा तो इसका भी 1 होगा, तो इसका 3 हो जाएगा। और जो भी हमारा एनकाउंटर हुआ है कैरेक्टर, तो हम 0 ऑर्डर को भी अपडेट करते रहेंगे। तो अभी तक हमने ब्लैंक तक कर दिया है, तो ब्लैंक हमारा अभी तक ऑलरेडी इनकोडेड में ब्लैंक तक है, तो इसमें ब्लैंक 2 टाइम्स आ चुका है, तो इससे हम यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ 8 9, यहाँ भी 9, टोटल काउंट 9 हो जाएगा। तो कोई भी लेटर आता है नेक्स्ट जिसको हम इनकोड कर चुके हैं, इनकोड करने के बाद 0 ऑर्डर को भी हमें अपडेट करना है। तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे स्केप सिंबल को हमने इनकोड कर दिया, 1 हमने ट्रांसमिट कर दिया। यहाँ पे नहीं था तो स्केप किया, उसके बाद हम 1 ऑर्डर पे जाएंगे। 1 ऑर्डर पे क्या होगा कि टी का सिर्फ ब्लैंक है, टी का ब्लैंक है 1 ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट। तो हम चेक करेंगे 1 ऑर्डर में है कि नहीं, तो ब्लैंक तो है बट इसका टी नहीं है, फिर यहाँ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी हमें स्केप इनकोड करना पड़ेगा। तो इसका भी CC हो जाएगा 2 और टोटल काउंट हो जाएगा 2। तो प्रीवियस वाला LU का वैल्यू और प्रीवियस का CC/TC का वैल्यू सेम था, इसलिए यहाँ भी जब हम इनकोड करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि सारे वैल्यू सेम थे। तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम आएगा। ऐसे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 नहीं था, इस तरीके से यहाँ पे 0 था, मीन्स 1 था। एक्चुअली जो भी प्रीवियस था वो यहाँ पे होगा। तो हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे टी, फिर यहाँ पे स्केप हो जाएगा, टी हो जाएगा 3 3। इस तरीके से हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद हम स्केप को हमने इनकोड कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे 0 ऑर्डर पे। 0 पे जाएंगे तो चेक करेंगे टी यहाँ पे है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको CC और TC की वैल्यू लेके LU फाइंड करके उसके बाद टेबल को हम अपडेट करेंगे लास्ट में। अगर
ऑलरेडी इनकोडेड में भी टी नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसके को इनकोड करते हैं, फिर टी को यहाँ पे ऐड करते हैं, बट यहाँ पे टी है तो हम सिर्फ एल और सीसी और टीसी का यूज करके एलयू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टी बचा है, टी का जो कम्युलेटिव काउंट है 1 है और टोटल काउंट है वो 9 है, तो सिर्फ हमें यहाँ अपडेट करना है। ये सी सी 1 है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 0, 6 बिट में 0 इक्वल टू 0। यहाँ सारे सेम है, बस यहाँ चेंज करना होगा, सी सी यहाँ पे 1 है और ये 9। ये जब डिवाइड करेंगे 64 को 9 से तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम यहाँ पे 7 ले लेंगे, इसका फ्लोर वैल्यू -1 6 हो जाएगा। ये 6 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 1 0 0 0 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एमएसबी 3 बिट मैच कर रहा है, तो इसलिए हम 3 जीरोस को सेंड कर देंगे, तो फिर यहाँ पे 0 0 0 अपेंड कर देंगे, यहाँ 1 1 1 अपेंड कर देंगे। यहाँ पे इस बार एल और यू की वैल्यू डिफरेंट आई है, तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। एल तो 0 ही है, ये 1 1 0 और 1 1 1 है, इसकी वैल्यू होगी 755, और यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देंगे, जो कि 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, सब अपडेट करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। एक्चुअली 2 + 1 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इस तरीके से ये अपडेट हम लास्ट में कर देंगे। तो हमने टी को भी इंपोर्ट कर लिया, फिर हम एच देखेंगे। एच का ब्लैंक और टी है, यहाँ पे ब्लैंक टी कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसके को भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, सीधे आ जाएंगे 1 ऑर्डर पे। 1 ऑर्डर पे एच का टी है, एच का टी है, तो हम सी सी 1 हो जाएगा और टोटल काउंट हो जाएगा 2। फिर हम एल और यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट है एल और यू की वैल्यूज। 0 प्लस यहाँ पे 55 माइनस 0 प्लस 1, सी सी 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, 6 जीरो। यू है 0 प्लस 55 माइनस 0 प्लस 1 इंटू सी सी 1 है, डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2 28 माइनस 1 27। 27 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 1 0 1 1, 16 8 24 24 3 27, और यहाँ पे 0, क्योंकि 6 बिट में हम रिप्रेजेंट करना है, तो ये सिंगल बिट मैच कर रहा है 0, तो हम 0 को ट्रांसमिट कर देंगे। नाउ एच है यहाँ पे, तो यहाँ पे था, तो हम काउंट क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि अब तक एच का जो कॉन्टेक्स्ट ही है वो 2 बार आ चुका है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको अपडेट कर देंगे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ तो हमें अपडेट करना ही है, तो एच हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 8 10 11, तो टोटल काउंट हो जाएगा यहाँ पे 11। इस तरीके से हमने एच तक इनकोड कर दिया, तो ये हमारा जो है कंप्रेस्ड डेटा है, इसको हम ट्रांसमिट कर देंगे सोर्स से। इसके बाद भी अगर डेटा होता तो इसी तरह से हम फाइंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, BWT इनकोडिंग देखते हैं। इसमें जिस भी सिंबल्स को हमें इनकोड करना होता है इस मेथड से, उसके ये कॉन्टेक्स्ट का यूज करता है इनकोडिंग के लिए, और इसमें जिस भी सिंबल्स को हमें इनकोड करना है वो पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही हम इसको इनकोड कर सकते हैं। मीन्स कि जितने भी सिंबल्स हैं वो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होने चाहिए इसको हमें इनकोड करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे नेटवर्क में होता है कि हमारे पास डेटा आ रहे हैं फिर हम इसको यहाँ पे इनकोड करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेटा सारा हमारे पास पहले से ही होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं, इसकी इनकोडिंग को। सपोज जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है RUDRA
इसको हमें इनकोड करना है। तो ये 5 नंबर्स हैं, तो इसका हम 5 लेंगे परमुटेशन 0 1 2 3 4। फर्स्ट में ये सीक्वेंस एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे कि 1 1 शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाई 1 कैरेक्टर। तो इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा U D R A R। फिर इसको शिफ्ट करेंगे तो D, ये आ जाएगा यहाँ पे R A R U। लेफ्ट शिफ्ट करना है सर्कुलर में, मीन्स ये U D R A और फिर ये R यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे फिर से शिफ्ट करेंगे तो R A R U D देन A R U D R। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम फॉर्म करते हैं परम्यूटेशन। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि इसको हमको सॉर्ट करना है लेक्सोग्राफिकली। तो इसमें RUDR में सबसे पहले ए आएगा, फिर D, फिर फर्स्ट R, फिर सेकंड R, फिर U। तो इस तरीके से हमें सॉर्ट करना है लेक्सोग्राफिकली। तो फर्स्ट को हम सॉर्ट करते हैं, तो इसमें ए सिंगल ही है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 है। पहले ए होगा, फिर उसके बाद सर्कुलरली R U D R, ए कंप्लीट। फिर हम सेकंड में, फर्स्ट में ए था तो फर्स्ट में हमने ए से स्टार्ट किया था, फिर सेकंड में डी है तो हम डी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो D R A R U। फिर ये है थर्ड है R। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट R से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 आ रहे हैं बट हम फर्स्ट R से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा R A R U D। ये हो गया। फिर उसके बाद ये सेकेंड आर है, तो इसका ये फर्स्ट आर था, ये सेकेंड आर था, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे R U D, फिर ये R, फिर A, फिर U है, U यहाँ पे है तो U से स्टार्ट करेंगे U D R A R। फिर क्या होगा, ये जो लास्ट वाला है सीक्वेंस जो है R U D A R, यही हमारा इनकोडेड फॉर्म हो जाएगा L। तो इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, ये तो ये इनकोडेड फॉर्म है और एक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको डिकोड करने के लिए। इंडेक्स ये जो है, इसमें से वो नंबर है जहाँ पे जो ये ओरिजिनल सीक्वेंस आता हो। तो इन सब में ये है जो RUDRA, ये ओरिजिनल सीक्वेंस है जो इनिशियली गिवन था। तो इसी का जो ये नंबर होता है वही इंडेक्स होता है, तो I इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो L है RUDAR। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इसका यूज करके इसको डिकोड करके चेक करेंगे कि इनिशियल आ रहा है कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, BWT डिकोडिंग देखते हैं। तो जो हमने इसको इनकोड किया था तो L की वैल्यू RUDAR और इंडेक्स इक्वल टू 3 आया था। ये डिकोडिंग का एल्गोरिदम है, बट पहले हम एक शॉर्टकट से फाइंड कर लेंगे, इसको डिकोड कर लेंगे। उसके बाद हम एल्गोरिदम से भी देखेंगे कि कैसे डिकोड करते हैं। एग्ज़ाम में शॉर्टकट का यूज या ये जो एल्गोरिदम से आप फाइंड करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं कि जो आपने एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड किया है वो सही है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका हम इंडेक्स लिख देंगे 0 1 2 3 4, जैसे हम एरे में लिखते हैं। इसके बाद हम F फाइंड करेंगे। F क्या होगा कि इसका लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होगा जो हमेशा यहाँ पे सेम ही रहेगा, ADRRU। पहले A आता है, फिर D, फिर R, फिर U। इसका भी हम इंडेक्स लिख देंगे। उसके बाद हम T फाइंड करेंगे। T में क्या होगा कि ये जो फर्स्ट R है यहाँ से हम चेक करेंगे और इंडेक्स यहाँ से लिखेंगे। जैसे R है तो R 2 है, फर्स्ट R 2 है, फिर U है तो U 4 है, फिर D है 1, A है 0, R है सेकेंड R, फर्स्ट R 2 था, ये सेकेंड R है तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम इसका भी इंडेक्स लिख देंगे 0 1 2 3 4। ये सबका हमने इंडेक्स लिखा हुआ है।
तो ये LFT शॉर्टकट का यूज करें या फिर इस एल्गोरिदम का यूज करें, ये तीनों तो फाइंड करना ही है। तो शॉर्टकट से क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब हम D5 कैलकुलेट करेंगे तो L ऑफ इंडेक्स D5 होगा। इंडेक्स क्या है 3, तो L ऑफ 3 जो कि A है, तो D ऑफ 5 A हो जाएगा। फर्स्ट सिर्फ D5 हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जितना होगा उसका सिंगल मेथड है। बट जो फर्स्ट होगा, अगर ये 5 ना होके इसका लेंथ 10 होता तो D10 हम इस तरीके से कैलकुलेट करते कि L ऑफ इंडेक्स वो हमारा D10 हो जाता। उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स 3 है तो हम यहाँ T पे आ जाएंगे। इंडेक्स 3 है तो 3 का 0, 0 पे क्या है R, तो D4 R हो जाएगा। फिर हम 0 पे थे, फिर यहाँ पे आएंगे 0 पे क्या है 2, L ऑफ 2 D हो जाएगा। फिर 2 पे क्या है 1, तो 1 U हो जाएगा। फिर 1 पे क्या है 4, 4 हो जाएगा R। इस तरीके से हमने इसको डिकोड कर दिया, RUDRA, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये इसके डिकोड का इंडेक्सिंग है, तो इसको 1 2 3 4 में अगर हम अरेंज करें तो RUDRE हो जाएगा। तो शॉर्टकट से सिंपली हमने इसको डिकोड कर दिया। अब हम एल्गोरिदम से डिकोड करके देखेंगे। ये एग्ज़ाम में आप टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं कि डिकोड करने पे सही आ रहा है कि नहीं आंसर। तो अब हम एल्गोरिदम से फाइंड करते हैं। इसमें भी LFT का यूज करना ही करना है। इसको इरेज कर देना ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ भी सेम है, L ऑफ I इज इक्वल टू DN। L ऑफ I की वैल्यू को हम DN में हमें पुट करना है। N क्या है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस जो कि 5 है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस 1 2 3 4 5, तो N इज इक्वल टू 5 है। तो L ऑफ I 3 है, L ऑफ 3 A है, A को डालना है D ऑफ 5 में। तो फर्स्ट टाइम तो ये शॉर्टकट और एल्गोरिदम का सेम है। फिर यहाँ पे इंडेक्स को हमें यहाँ पे फर्स्ट लेके लिखते हैं, K में हमने इंडेक्स डाल दिया, K इक्वल टू 3। इंडेक्स को हमने K में डाला जो कि इंडेक्स 3 है, सो K में डाल दिया। उसके बाद हम N-1 टाइम्स चलेंगे, मतलब कि 4 टाइम्स चलेंगे, तो K3 यहीं पर रखते हैं 4 टाइम्स। J की वैल्यू 1 है, 1 से N-1 जो कि 4 होगा, तो 1 2 3 4 ये जो लूप है वो हम 4 टाइम्स इसको चलाएंगे। तो फर्स्ट हम चला रहे हैं, K की वैल्यू 3 है, तो T ऑफ 3, T ऑफ यहाँ पे इंडेक्स लिख दे रहा है, यहाँ पे K की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखते हैं, K में हमें डालना है K ऑफ T ऑफ 3 जो कि 0 है, T ऑफ 3 है 0 है, तो यहाँ पे K पे हमारा आ जाएगा 0। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है L ऑफ K 0 को हमें पुट कर देना है D ऑफ N-J। N यहाँ पे N तो हमेशा 5 ही है, और J हमने फर्स्ट लूप लिया है तो J की वैल्यू 1 है, तो 5 - 1 4, D4 में हमारी वैल्यू होगी L ऑफ 0, L ऑफ 0 है R, ये R है, तो हम D4 में R पुट कर देंगे। ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर हम सेकेंड लूप चलाएंगे, यहाँ पे J की वैल्यू 2 है, फर्स्ट लूप में J की वैल्यू 1 थी। फिर T ऑफ K को हम K में डालेंगे, तो K की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो K में हम डालेंगे T ऑफ 0, क्योंकि T ऑफ K को डालना है, तो T ऑफ 0 है 2, तो 2 को डालना है K में, तो K में अब 2 आ गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, L ऑफ K, L ऑफ 2 को हमें डालना है D ऑफ N-J, N की वैल्यू 5 है और J की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 3, तो L ऑफ 2 क्या है D, तो इस D को हम डाल देंगे D ऑफ 3 में, ये हो जाएगा D। तो ये सेकेंड लूप हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड लूप देखते हैं, तो K की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो T ऑफ 2 को हमने K में डाल दिया, तो T ऑफ 2 है 1, तो K इस बार हो जाएगा 1। इसके बाद सेकेंड स्टेप L ऑफ K
k है 1, l ऑफ 1 को हमने पुट किया है, हमें डालना है d ऑफ 2 में, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू 3 है तो 5 माइनस 3 2, तो l ऑफ 1 जो है u है, u, तो d ऑफ 2 में हमको u डालना है। फिर जो फोर्थ है तो यहाँ पे j की वैल्यू 4 हो जाएगी, k की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे t ऑफ k मीन्स t ऑफ 1 हमें डालना है k में, t ऑफ 1 है 4, मतलब k की वैल्यू यहाँ पे 4 है। नाउ यहाँ पे सेकंड में क्या है, l ऑफ 4, l ऑफ k को जो कि k4 है इसको डालना है d ऑफ n माइनस j, n 5 है j 4 है, d ऑफ 1, l ऑफ 4 है r, तो r को हमने d1 में डालना है, r को हमने d1 में डालना है। तो ये एल्गोरिथम का यूज करके हमने डिकोड किया है, इसको भी इसी तरह फाइंड करेंगे तो आर यू डी आर ए, इस तरीके से हमने इसको डिकोड कर दिया। फिर जब नेक्स्ट होगा नेक्स्ट टाइम तो j की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये यहाँ से लूप ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 तक ही चलना है। तो इस तरीके से हम डिकोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, क्वांटाइजेशन देखते हैं। सपोज क्या है कि हमारे पास वेरी लार्ज वैल्यूज़ हैं, पॉसिबली इनफाइनाइट। अगर हम इसको फाइनाइट वैल्यूज़ में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट नंबर्स हैं, अगर इनको हमें सपोज हम इसको -10 टू +10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस इनफाइनाइट को हम फाइनाइट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटाइजेशन और वेक्टर क्वांटाइजेशन। तो जैसे यहाँ पे है तो ये स्केलर क्वांटाइजेशन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल इंटरवल या सैंपल होता है उसको हम सिंगल कोड से रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर में, बट वेक्टर में क्या होता है कि मोर देन वन इंटरवल को हम सिंगल कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये स्केलर क्वांटाइजेशन का इनकोडिंग और डिकोडिंग देखते हैं कि कैसे हम इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ को फाइनाइट सेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एरर होता है, ज़रूर एरर होगा, हम देखते हैं कैसे होगा। तो सपोज इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, और इसमें ये कुछ इंटरवल्स हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो अगर हमें इस इनफाइनाइट जो नंबर्स हैं अगर उनको हमें कन्वर्ट करना है फाइनाइट नंबर्स में, तो इसको हम 8 नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इस टोटल प्लस इनफाइनाइट टू -इनफाइनाइट में। तो हम क्या कर रहे हैं कि -इनफाइनाइट से -3.0 के बीच में कोई भी नंबर हो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 से, और -3 से -2 तक कोई भी नंबर हो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। इसी तरह 0 से 1 के बीच में कोई नंबर हो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 से। ऐसे 3 से आगे 3 से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 7 से। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट कर लिए हैं। बट यहाँ पे एरर इसलिए है कि अगर यहाँ 3 to -3 एरर कम है, सपोज हमारा नंबर है 0.7, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 से ही, 0.1 है इसको भी हम 4 से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.9 है इसको भी हम 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एरर माइन्यूट है, लेस देन 1 है। बट यहाँ पे मोर देन 3 अगर है प्लस इनफाइनाइट तक, सपोज हम 1 लाख को भी 7 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 करोड़ को भी हम 7 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एरर काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस है, इसका यूज़ हम करते हैं मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट सेट को फाइनाइट सेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको इनकोड किए हैं कि हमारा इनपुट जो था वो इनफाइनाइट था, इसको हमने इनकोड कर दिया फाइनाइट सेट में। बट अगर हमें फिर से वो सेम इनपुट सेट चाहिए तो क्या हमें वो मिल सकता है? ये एग्जैक्टली नहीं मिल सकता, क्योंकि क्या है कि सपोज 0.7 को हमने 4 में कन्वर्ट किया, 0.1 को भी 4 में, 0.9 को भी 4 में हमने कन्वर्ट तो कर दिया। बट अगर हमारे पास अब 4 दिया गया है तो हम 4 से कैसे पता करेंगे कि ये 0.7 था कि 1 था कि 0.9 था? तो ये एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते हैं। तो
एक्चुअली हम क्या लेते हैं कि मिड वैल्यू ले लेते हैं, जैसा कि हम डिकोडिंग में देखते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं 8 नंबर्स में। अगर ये नंबर्स दिए हों और हमें ये इनपुट फाइंड करना हो जो स्टार्टिंग में इनपुट था, तो सपोज ये कोड्स को हम इनपुट की तरह दे रहे हैं डिकोडर को, तो क्या होता है, सपोज हम दे रहे हैं 101 दे रहे हैं, तो जनरली हम मिड वैल्यू लेते हैं 1.5। एक्चुअली 1 से 2 के बीच में हमने कोई भी इनपुट दिया था तो ये 1015 जो था वो आउटपुट आया था, बट हमने 5 जो इनपुट दिया तो ये 1.5 इसका आंसर आ रहा है। तो सपोज 1 हमने दिया तो इसका भी 5 आया, 1.5 का भी 5 आया, 2 सपोज 1.9 का भी 5 आया। तो इस तरीके से हम 1.5 तो ले रहे हैं, तो यहाँ यहाँ पे एरर होगा 0, यहाँ पे 0.5 का एरर होगा, यहाँ पे 0.4 का एरर होगा। तो इस तरीके से डिस्टॉर्शन होगा डेटा में। बट इसके मिड पॉइंट के अलावा और हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी हम फाइंड नहीं कर रहे हैं एक्चुअली क्या इसकी वैल्यूज़ है, बस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ ले रहे हैं कि ये क्योंकि अगर हम कहीं और वैल्यूज़ लें तो एरर हो सकता है और ज़्यादा हो, तो जनरली हम मिड वैल्यूज़ लेते हैं। तो ये स्केलर क्वांटाइजेशन का इनकोडिंग एंड डिकोडिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन देखते हैं। डिस्टॉर्शन को हम नॉइज भी बोलते हैं और एरर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि क्वांटाइजेशन का इनपुट है और उसका आउटपुट है, उसका जो डिफरेंस होता है वही होता है डिस्टॉर्शन। जैसे हम लास्ट वीडियो में देखा था कि सपोज अगर इनपुट 2.1 से अगर 3 के बीच में भी है तो इसका जो आउटपुट था वो 2.5 था। तो ये जो डिफरेंस है यही होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसी को डिस्टॉर्शन बोलते हैं। सपोज अगर हमारा इनपुट 3.0 है और आउटपुट 2.5 आ रहा है तो डिस्टॉर्शन 0.5 है। अगर 2.7 है इनपुट और 2.5 ही आउटपुट आना है तो इसका डिस्टॉर्शन 0.2 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन जो पॉसिबल है वो 0.5 है। तो डेल होता है वो, इसका जो विद होता है इनपुट का या फिर आउटपुट का, ये डेल होता है जो कि 1 है। तो जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो डेल बाई 2 हो सकता है। और क्या होता है कि जो इनपुट है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं, और वाई को जो कि आउटपुट है उसको रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे B1 B2 B3 सो ऑन, यहाँ B0 इसको Y1 Y2 Y3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मैपिंग का, इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन जो फंक्शन होता है इनपुट x पे वो होता है yi। ये कब होता है? जब x bi से छोटा या इक्वल हो और bi-1 से बड़ा हो। इसका मतलब देखते हैं। सपोज i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या है? b0 से बड़ा है और b1 से इक्वल या छोटा है। अगर x की वैल्यू b0 और b1 के बीच में लाई कर रही है तो इसका जो आउटपुट होगा, हमने यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिया है, y1 होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट है x, इसकी वैल्यू अगर b0 से लेके b1 तक है तो इसका जो आउटपुट है वो y1 है। ऐसे ही अगर b1 से b2 के बीच में अगर इनपुट है कहीं भी, इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा y2। जैसे अगर हम i इक्वल टू 2 रखें तो ये हो जाएगा b1 x और ये हो जाएगा b2। तो इस तरीके से, और i जब 2 रखें तो ये y2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर b1 और b2 के बीच में है तो इसका आउटपुट हो जाएगा y2। तो ये जो qs है इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन फंक्शन। तो अगर हम डिस्टॉर्शन अगर इस फॉर्म में लिखें तो हमें पता है कि इनपुट माइनस आउटपुट होता है डिस्टॉर्शन। अगर हम क्वांटाइजेशन फंक्शन के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा x माइनस क्यू ऑफ x। ये हमारा क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन है। हम इस एरर को एक और फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम मीन स्क्वायर एरर बोलते हैं, मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर। तो इसको फाइंड करते हैं। सपोज ये जो इनपुट है वो मॉडल किया गया है किसी रैंडम वेरिएबल x से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं वो इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम एक रैंडम वेरिएबल से इसको मॉडल कर रहे हैं और सपोज करते हैं कि इसका जो पीडीएफ है जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो f ऑफ x है। ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है। सपोज कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x क्या होता है कि किसी इंटरवल में x के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x ये बताएगा कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में उस इनपुट की उस x की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये पीडीएफ बताता है हमें। तो हम मीन स्क्वायर एरर फाइंड करते हैं, मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर। ये क्या होता है? माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट और ये q एंड एफ एक्स
dx। ये जो क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन है, अगर हम इसको इसकी वैल्यू लिखें तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट x माइनस क्यू एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। बट हमारा ये क्या है कि यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट है, तो इसको हम दूसरे रेंज में भी लिख सकते हैं। जैसे इसी को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू m, यहाँ पे बी आई माइनस वन टू बी आई एक्स माइनस वाई आई स्क्वायर, ये एक्चुअली स्क्वायर होता है यहाँ पे क्योंकि मीन स्क्वायर एरर है, एफ एक्स एक्स डी एक्स। इसका मतलब यह है कि हर इंटरवल का जो डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट का, उसका मीन स्क्वायर है, और ये सारे इंटरवल्स के लिए हैं, आई इक्वल टू 1 टू m सारे इंटरवल्स के लिए हैं। तो ये मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर देखते हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजर वो क्वांटाइजर होता है जिसका जो रिकंस्ट्रक्शन लेवल है उसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सपोज यहाँ पे 1 से 2 का डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। तो जब सारे डिफरेंस, ये लास्ट वाला प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट छोड़ के जो भी डिफरेंसेस हैं अगर वो कांस्टेंट है, जिनको हम स्टेप साइज भी बोलते हैं, तो ऐसे क्वांटाइजर को हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर बोलते हैं। इसके दो फीचर्स ये, इसके एक और फीचर ये है कि इसका जो कांस्टेंट होता है वो एक्स एक्सिस पे भी कांस्टेंट होता है, तो ये भी डेल के इक्वल ही होता है। मीन्स इनपुट और आउटपुट का जो कॉन्जिक्यूटिव है उसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम इसको रिकंस्ट्रक्शन लेवल को आर से रिप्रेजेंट किए हैं, आर आई प्लस वन माइनस आर आई इक्वल टू डेल, तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, तो इसको हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर बोलते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, मिड राइज और मिड ट्रेड। मिड राइज में क्या होता है कि हम जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वहीं मिड ट्रेड में क्या होता है कि हम जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें क्वांटाइजर में जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो मिड राइज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में अगर हमारा इनपुट है तो आउटपुट 0.5 है, 1 से 2 के बीच में इनपुट है तो आउटपुट 1.5 है। पहले भी हम ऐसा देख चुके हैं। अगर हम इसका डिस्टॉर्शन कर्व बनाएं तो कुछ इस तरह दिखेगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर हमारा इनपुट 0.5 है तो इसका आउटपुट भी 0.5 है, मतलब अगर इनपुट 0.5 है तो एरर यहाँ पे 0 होगा क्योंकि इनपुट आउटपुट सेम है। तो ये जो पॉइंट है वो है ये 0.5। यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस इनपुट है और ये वाई एक्सिस है वो डिस्टॉर्शन है एक्स माइनस वाई। तो अगर हमारा इनपुट 0.5 है तो यहाँ पे एरर हम आप देख सकते हैं कि 0 है। वैसे ही यहाँ पे अगर 0 है हमारा इनपुट तो आउटपुट 0.5 है। मैक्सिमम एरर जो होता है वो डेल बाई 2 के इक्वल होगा, 0.5 माइनस 0.5, तो मैक्सिमम एरर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनपुट जो 0 है तो यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम एरर डेल बाई 2 है और नेगेटिव भी माइनस डेल बाई 2 है। इस तरीके से अगर हमारा इनपुट 1.5 है तो इसका आउटपुट भी 1.5 है, तो इसका एरर 0 होगा। इसलिए यहाँ पे जो 1.5 जो पॉइंट है वहाँ पे एरर 0 है। इसके बीच में क्या होता है कि 1 से 1.5 के बीच में हमारा है वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर से डिक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके से। अगर हम मिड ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे सपोज अगर हम ले रहे हैं कि इनपुट 0.5 टू 1.5 है तो इसका आउटपुट 1 आएगा, 1.5 से 2.5 के बीच में इनपुट है तो इसका आउटपुट 2 आएगा। इस तरीके से अगर हम एज्यूम करें तो फिर इसका जो हम डिस्टॉर्शन कब बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे अगर 1 होगा इनपुट तो यहाँ पे एरर 0 होगा, जो कि पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे 1 होगा जो कि डेल के इक्वल है, डेल यहाँ पे 1 है, डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो एरर 0 होगा। एक्चुअली इसका ऑपोजिट है। इस तरीके से अगर हमारा 2 हो, 2 अगर इनपुट हो तो उसका भी आउटपुट 2 आएगा, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर 0.5 है, 0.5 है तो उसका आउटपुट 1 है, तो मैक्सिमम होगा यहाँ पे 0.5 पे यहाँ पे मैक्सिमम एरर हमें मिल रहा है डेल बाई 2। जैसे कि यहाँ पे था तो यहाँ पे 1 था, 0 पे
मैक्सिमम एरर मिलेगा, फिर 1 पे मैक्सिमम एरर मिलेगा, क्योंकि 0 का और 0.5 का डिफरेंस 0.5 होगा, फिर 1 और 0.5 का डिफरेंस भी 0.5 होगा। तो इससे यहाँ पे ये 0 है और 1 है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम एरर मिल रहे हैं, और 0.5 पे हमको 0 मिल रहा है, 1.5 से 1.5 पे 0 मिल रहा है, वहीं 1 और 2 पे मैक्सिमम एरर मिल रहा है। इसके बीच में नेगेटिव टू पॉजिटिव एरर इंक्रीज करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स देखते हैं। इसमें क्या है कि जो सोर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये है कि जो सोर्स का आउटपुट है, सपोज वो -x मैक्स, और जो इसका रेंज है वो ये है -x मैक्स से x मैक्स तक सपोज, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। सपोज डिफरेंस 2 है और -x मैक्स -10 है और x मैक्स 10 है, तो इसका जो आउटपुट आएगा सोर्स का वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2 4 6 से 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका आउटपुट होगा। मतलब कि जो सोर्स का आउटपुट है, जो कि इनपुट होगा क्वांटाइजर का, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें हम मीन स्क्वायर्ड एरर फाइंड करते हैं, कितना होगा यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स में। तो मीन स्क्वायर्ड क्वांटाइजेशन एरर जो होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा क्यू स्क्वायर से, ये मीन एंड देन इसका जो डिस्टॉर्शन, और हमें पता है कि जो डिस्टॉर्शन होता है वो उसका रेंज होता है -del/2 से del/2 के बीच में। ये del/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सपोज अगर 1 से 2 का जो आउटपुट है 1.5 है, तो यहाँ पे अगर 1 है तो एरर होगा 0.5, जो कि डेल यहाँ पे 1 है तो del/2, इससे ज़्यादा एरर हो नहीं सकता। अगर हम 1.1 लेंगे तो एरर 0.4 हो जाएगा, जो कि एरर कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरर del/2 होता है यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। और वैसे ही अगर 2 है तो इसका -0.5 होगा एरर, तो इसलिए -del/2। तो क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कि हम जो रेंज है एरर का -del/2, और यहाँ पे del/2 ले लेंगे और dq। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 1/del, ये हो जाएगा q/3, q स्क्वायर का इंटीग्रल, और del/2 -del/2। 1/3 को अगर हम बाहर लेंगे तो 1/3 del, यहाँ पे बचेगा q³ del/2 -del/2। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा del3/2, जो कि 8, यहाँ माइनस होगा फिर माइनस। यहाँ पे क्या होता है कि अपर रेंज माइनस लोअर रेंज होता है, तो लोअर रेंज ऑलरेडी माइनस में है, मीन्स कि ऐसे होगा माइनस माइनस फिर लोअर रेंज, तो इससे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये भी del3/8 हो जाएगा। इस तरीके से 1/3 del 2 del3/8, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा, और ये del2, ये हो जाएगा del²/12। तो जो इसका मीन स्क्वायर एरर आएगा वो आएगा del²/12। जो हमने वो इंटीग्रल वाला फॉर्म देखा था, उस मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि del²/12 आ रहा है। जो हमने मीन स्क्वायर एरर वाला देखा था फॉर्मूला, समेशन ऑफ i = 1 to m इंटीग्रल bi-1 to bi x - qx, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन dx। इसका भी यूज़ करके हम डिराइव कर सकते हैं, जिसका आंसर del²/12 आएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हम उसको फाइंड करते हैं। इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या है कि ये जो टोटल जो इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, 2x मैक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर -10 to अगर 10 हमारा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो इसका सम होगा वो हो जाएगा 20। टोटल जो इंटरवल्स होंगे वो हो जाएगा 20, तो इसलिए 2x मैक्स। तो x की होने की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल, मतलब सिंगल x की होने की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में, जो कि 2x मैक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका। तो इसको
हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद क्या है कि हमें ये सेकंड फाइंड करना है क्यू एक्स, जो कि क्वांटाइजेशन आउटपुट है। ये कैसे फाइंड करेंगे कि सेम ऐसे ही कि अगर 1 से 2 के बीच में हमारा था इनपुट तो 1.5 आउटपुट आ रहा था। तो अगर इसी तरीके से हम फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस 1/2 अगर हम लिखें तो क्या होगा, अगर हम i की वैल्यू 1 ले रहे हैं 2 माइनस 1/2 तो इसका आंसर आ रहा है 0.5। अगर i की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं 3 2 6 माइनस 1 5/2 2.5, तो ये एग्जैक्टली जो हमने फाइंड किया है वैसा ही आ रहा है कि अगर 1 और 2 के बीच में अगर i की वैल्यू हम डालेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 0.5। बट यहाँ पे क्या है कि ये तब काम करेगा जब डेल इक्वल टू 1 है। बट यहाँ पे हमें पता नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये नहीं है कि डेल इज इक्वल टू 1 ही हमेशा हो। यहाँ पे डेल इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, ये भी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए अगर हम यहाँ पे डेल इज इक्वल, यहाँ पे अगर हम डेल यूज करें, अगर डेल इज इक्वल टू 1 है तो ये फॉर्मूला ओके है। बट यहाँ पे हमें डेल का पता नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, इसलिए हम यहाँ पे डेल यूज करेंगे। अगर हम डेल पे 1 पुट करें तो फॉर्मूला एग्जैक्टली काम कर रहा है कि अगर हम 3 और 4 के बीच में अगर हम इनपुट दें तो 3.5 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्यूब एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम क्यूब एक्स में पुट करें और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का हम इसमें पुट करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो फिर से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो बी आई, तो यहाँ पे हम लेंगे नहीं बी आई माइनस 1 टू बी आई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आई माइनस 1 डेल टू आई डेल। इसलिए कि सपोज जो डेल है वो 1 है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है और इसका लेंथ 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू हो, 1 से 2 के बीच में वैल्यू हो, 2 से 3 के बीच में वैल्यू हो, तो आउटपुट क्या होगा। जैसे अगर हम i पे 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 और 1 0 to 1 1 से 2 2 से 3, और अगर हम यहाँ पे i इक्वल टू 1 अगर पुट कर रहे हैं तो 0 to 1 इंटरवल आएगा, और i इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब कि इंटरवल अगर 0 से 1 तक है तो इसका आउटपुट हमारा 0.5 आ रहा है। तो ये जो इंटरवल्स हैं और ये जो क्वांटाइजेशन फंक्शन है वो करेक्ट है। ये हमारा पीडीएफ है कि x की होने की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में क्या है 1/2x मैक्स है, क्योंकि इसका डबल x मैक्स का डबल। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सारी वैल्यूज इसमें पुट करके, तो हमें वापस डेल स्क्वायर बाई 12 आएगा। अगर इसको प्रूफ करने के लिए आता है तो किसी मेथड से जो पहले हम लोगों ने किया था या फिर ये किसी मेथड से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर देखते हैं। इसमें जो इंटरवल्स होते हैं उनका साइज फिक्स नहीं होता है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। सपोज इसका साइज ये सब अनइक्वल साइजेस हैं, वही वाई साइड भी ये सारे अनइक्वल्स हैं। तो जनरली इसका यूज़ क्यों करते हैं, सपोज सोर्स है हमारे पास जो कि इनफाइनाइट जो भी सेट ऑफ डेटा है उसको जनरेट कर रहा है, और इसको एज ए इनपुट हम क्वांटाइजर को दे रहे हैं। बट अगर हमें ये पता है कि जो ये आउटपुट सोर्स जनरेट कर रहा है वो किसी पार्टिकुलर रेंज में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा है। सपोज अगर हमें ये पता है कि ये B5 और B6 के बीच में जो सोर्स है वो ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहा है, और B7 टू B8 के रेंज में काफ़ी कम आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसलिए हम इसका जो साइज़ रखे हैं वो जो डिफरेंस रखे हैं वो कम रखे हैं, इसका हम ज़्यादा रखे हैं। ये इसलिए कि अगर इस रेंज में सोर्स आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर रहा है तो हम चाहते हैं कि इस रेंज में एरर मिनिमम हो, और जहाँ पे आउटपुट ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है जो कि क्वांटाइजर का इनपुट है वहाँ पे हम चाहते हैं कि एरर अगर हो थोड़ा ज़्यादा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो इसका आउटपुट होगा वो तो इसी रेंज में होगा। जैसे B2 B3 रेंज है, इसका मतलब ये है ये पास में है, इसका मतलब ये है कि जो सोर्स आउटपुट जो जनरेट कर रहा है वो इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पास में यूज किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस तरीके से यूज करें और यहाँ पे यूज करें, अगर हम डिफरेंस देखें इसका, तो जो इसका एरर आएगा वो काफ़ी कम होगा इसके एरर से। सपोज अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू है
सपोज 1 से 2 के बीच में हम 1.5 ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे 5 to 10 के बीच में हम अगर 7.5 ले रहे हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एरर हमारा 0.5 ही होगा, बट यहाँ पे मैक्सिमम एरर 2.5 होगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि ये जो सोर्स आउटपुट जनरेट कर रहा है वो इस रेंज में ही ज़्यादा है, तो हम इसलिए ये जो इंटरवल है उसको, उसका जो विड्थ है उसको कम रखे हैं, क्योंकि एरर हमारा कम हो सके। तो इस वजह से हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, एडेप्टिव क्वांटाइजर देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पैरामीटर फिक्स नहीं होता है। सपोज जो यूनिफॉर्म में हमने देखा था, हमने या स्टेप साइज इसका फिक्स था, रिकंस्ट्रक्शन लेवल, डिसीजन लेवल यहाँ फिक्स था। बट यहाँ पे क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। तो इसमें हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन का, और उसका यूज करके हम इसके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। सपोज हमारे पास 4 क्वांटाइजर्स हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और सपोज इसका एरर है वो 0.5 है, 1.0, 1.5, 2.0। सपोज कोई इनपुट आता है इसके पास, क्वांटाइजर के पास, वो इस इनपुट के स्टैटिस्टिक्स का यूज करके फाइंड करता है कि अगर हम इसे इस क्वांटाइजर से अगर हम पास कराते हैं तो जो हमारा एरर है वो बढ़ जाएगा या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स अगर इस क्वांटाइजर से पास करा रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो ये क्या करेगा कि फिर इसको सेकेंड वाले से चेक करेगा। अगर इसे ये फिजिबल लगेगा, Q1, Q2, Q3, Q4 में अगर ये Q2 इसको फिजिबल लगेगा तो इससे पास कराएगा। तो क्या होता है कि अगर ज़्यादा क्वांटाइजर्स नहीं भी हैं, अगर एक ही है, तो क्या करेगा कि ये पहले जो भी इनपुट है उसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन करेगा कि क्या इसका एरर आएगा, क्या इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से ये सारे पैरामीटर्स को सेट करेगा, उसके बाद इसको पास कराएगा। इसलिए इसका नाम होता है एडेप्टिव क्वांटाइजर्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है कि पहले इनपुट होता है। एक्चुअली हमने देखा है कि क्वांटाइजर में जो भी इनफाइनाइट सेट्स ऑफ इनपुट्स होते हैं उनको हम फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं कि जो भी ये इनपुट सेट होता है उसको हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एक फिक्स साइज ब्लॉक में। और इसके जो भी, और यहाँ पे ये ट्रांसमीटर साइड है और ये रिसीवर साइड है। ट्रांसमीटर साइड जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो हम इसको सेट करते हैं कि जिससे ये जो क्वांटाइजर है परफेक्टली बिहेव करे। तो इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, डिसीजन बाउंड्रीज, वाई, डेल, सब इसको यहाँ पे सेट करते हैं। और ये जितने भी पैरामीटर्स हम सेट किए हैं उसको हम रिसीवर को सेंड कर देते हैं। इसके बाद ये डेटा इनकोड होता है जो भी है क्वांटाइजर इनकोडर से, और जो पैरामीटर्स हम ट्रांसमीटर साइड में फिक्स किए हैं वही रिसीवर के पास पहुंच जाता है किसी और मीडियम से, और फिर उस पैरामीटर्स का यूज करके क्वांटाइजर डिकोड करके जो इनिशियल था वो हमें आउटपुट दे देता है जो हमें चाहिए होता है। इसमें भी एरर होता है बट मिनिमम, ये ट्राई करता है पैरामीटर सेट करके कि एरर जो वो मिनिमम हो। दूसरा क्या होता है कि बैकवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि पैरामीटर ट्रांसमीटर साइड फिक्स हो रहा था और उसको हम सेंड कर रहे थे किसी और मीडियम से रिसीवर साइड, इसलिए इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है बैकवर्ड में कि पैरामीटर पहले से ही दोनों साइड सेम पैरामीटर्स फिक्स रहते हैं, हमें सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें ऐसा नहीं होता कि पहले हम इसको इनकोड यहाँ फिक्स करेंगे तब इसको सेंड करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के पास पहले से ही होता है पैरामीटर्स, तो यहाँ पे इनकोड करके ये डायरेक्टली यहाँ पे डिकोड कर देता है। तो ये एक्चुअली फास्ट मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से ये इसके 2 टाइप्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटाइजेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटाइजेशन में क्या था कि सिंगल इनपुट को हम इनकोड करते थे। सपोज 0.75 को हम 10 से इनकोड कर रहे हैं। बट वेक्टर क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि हम ग्रुप ऑफ इनपुट्स को इनकोड करते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल है, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं वेक्टर क्वांटाइजेशन को। तो ये सपोज यहाँ पे 0.75 1.27 है, इसको हम ग्रुप कर दे रहे हैं। तो इस ग्रुप को हम साथ में इनकोड करेंगे, और इसी ग्रुप को, ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं।
और जो इसका लेंथ होता है उसको डायमेंशन बोलते हैं। मतलब कि जो इनपुट है 0.75 1.27 ये 2 डायमेंशन वेक्टर है। इस तरीके से करते हैं। तो क्वांटाइजर में इनकोडर है, डिकोडर है, इसमें कोडबुक इंडेक्स दोनों में सेम होते हैं। यहाँ पे कोडबुक क्या है कि पहले से ही एक्चुअली हम कोडबुक को डिज़ाइन करते हैं LBG एल्गोरिदम से, इनपुट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइनिंग होती है। तो पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि ये 2 डायमेंशन वेक्टर है इनपुट का। तो जितना डायमेंशन वेक्टर इनपुट का होगा उतना ही डायमेंशन हम ये कोड वेक्टर बनाएंगे। सपोज यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 डायमेंशन हमने कोड वेक्टर बनाया है। तो इसमें 4 नहीं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे जितने इसमें कोड वेक्टर्स हो सकते हैं। हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना होता है कि ये जो इनपुट वेक्टर है वो इस कोड बुक के किस वेक्टर के क्लोजेस्ट है, हमें ये फाइंड करना होता है। तो ये इनपुट आता है इसके पास फाइंड क्लोजेस्ट कोड वेक्टर, और ये फाइंड करता है कि कौन सा इसके क्लोजेस्ट है। बट हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये इनपुट क्या है 1 1 के क्लोजेस्ट है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो हम एरर फाइंड करेंगे, डिस्टॉर्शन फाइंड करेंगे इसका और सारे कोड वेक्टर्स का, जितना भी कोड वेक्टर्स दिए होंगे, और जिसका एरर मिनिमम होगा वही इसके क्लोजेस्ट होगा। तो डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला देखते हैं। ये x जो है वो इनपुट है और ये y है वो कोड वेक्टर्स हैं। x minus yj square is less than equal to x minus y square for all I is not equal to j। इसका मतलब ये है कि ये इनपुट को हम चारों के साथ चेक करेंगे और जिसका मिनिमम होगा वो हमारा कोड वेक्टर होगा। सपोज क्या है, ये x है 0.75 -2 है तो प्लस हो जाएगा +2 स्क्वायर प्लस 1.27 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। इस तरीके से हम सेकंड के साथ चेक करेंगे, ये +1 स्क्वायर, बाकी सब सेम है। यहाँ -1 स्क्वायर और फिर यहाँ -2 स्क्वायर, और इसमें जो भी मिनिमम आएगा इन सब में वही इसके क्लोजेस्ट होगा। तो इसका काम है यही फाइंड करना। तो हम जब फाइंड करेंगे तो इसके क्लोजेस्ट ये 1 1 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 1 1 आ जाएगा, और 1 1 की हम जितने भी कोड वेक्टर्स होंगे उसको हम इंडेक्स किए रहेंगे। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है 1 0 है। ये इनकोडर का जो इंडेक्स है वो डिकोडर के टेबल लुकअप से कनेक्टेड होता है। तो जो हमने अभी एग्जांपल लिया था स्केलर का कि हमने 0.75 को इनकोड कर दिया 1 0 से, तो यहाँ तक हमारा इनकोडिंग का काम पूरा हो गया है। ये जो इनपुट वेक्टर है इसको हमने इनकोड कर दिया है 1 0 से। फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 1 0 को डिकोड करके हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको डिकोड करेंगे तो 1 0 इंडेक्स जाएगा, ये फाइंड करेगा कि इंडेक्स 1 0 कहाँ है। तो ये इंडेक्स यहाँ पे है, इसका जो कोड बुक है वो है 1 1। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ये जो इनिशियली था वही हमारा आउटपुट हो जा रहा है। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर क्वांटाइजेशन काम करता है। ये अब इसके बाद हम क्वांटाइजेशन फंक्शन देखते हैं कि ये जो क्वांटाइजेशन फंक्शन ऑफ इनपुट x है और ये yj है, ये जो आउटपुट है इसका मतलब ये है कि सपोज x है वो 0.75 एंड 1.27 है, इसका आउटपुट 1 1 आ रहा है। तो 1 1 कैसे आ रहा है, जब ये जो है डिस्टॉर्शन, ये सेम फॉर्मूला है मॉड एंड स्क्वायर का, अगर इसका डिस्टॉर्शन इन बाकी सबसे अगर कम है तो हम ये फंक्शन को बोलेंगे ये अप्लाई हो रहा है। सपोज यहाँ पे क्या है qx yj, जैसे हमने डिस्टॉर्शन में कैलकुलेट किया था सारे के लिए, सेम वैसा ही है। तो 1 1 इसका फंक्शन तब होगा जब इसका डिस्टॉर्शन बाकी के डिस्टॉर्शन से मिनिमम होगा। वैसे ही है कि ये जो yj है, x और yj का डिस्टॉर्शन और x y i, सारे i जिसमें i और j बस इक्वल नहीं है तो सारे i के लिए हम चेक करेंगे, और अगर j वाला मिनिमम है इन बाकी सबसे तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, LBG एल्गोरिदम का इस वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे
और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे। पहले एग्जांपल देख लेंगे तो एल्गोरिदम समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो इसका यूज़ हम करते हैं इस एल्गोरिदम का, जो इनकोडर डिकोडर में कोडबुक था उसको उसकी डिज़ाइन करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कोडबुक था, तो इसकी डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हमें ऐसा कोडबुक बनाना है जिसका एरर मिनिमम हो। हम कोडबुक तो कुछ भी बना सकते हैं, बट इसका क्या है कि एरर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम ऐसा मीन्स कि हमें बेस्ट कोडबुक बनाना है जिसका एरर मिनिमम हो। लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने लिया था -2 -2 1 1 -1 -1, इस तरह हम रैंडम ले सकते हैं। बट अगर हमें लेकिन एरर का भी हमें नहीं पता कि कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, तो इसलिए हम बेस्ट कोडबुक डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम का प्रोसीजर है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इनिशियली हम रैंडम कोई ले लेते हैं, हम रैंडम वेक्टर्स ले लेते हैं पहले। उसके बाद कुछ इनपुट्स ले लेंगे हम इसको ट्रेन करने के लिए। फिर क्या करते हैं, हम इसमें से डिस्टॉर्शन फाइंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम अपडेट करते हैं। उसके बाद डिस्टॉर्शन क्या है, ये एल्गोरिदम क्या करता है कि इटरेशन में, जैसे फर्स्ट इटरेशन में कुछ डिस्टॉर्शन आया तो सेकेंड इटरेशन में इससे 100% पक्का है कि इससे कम होगा डिस्टॉर्शन, फिर थर्ड इटरेशन में इससे कम होगा। इस तरीके से इसका डिस्टॉर्शन कम होता जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हम कोडबुक लिए हैं इनिशियली, ये ट्रेनिंग सेट्स हैं, इनपुट्स हैं कुछ, इसका यूज करके हम इस ट्रेनिंग सेट को अपडेट करेंगे। अगर हम इसको एज इट इज़ सपोज यूज करते हैं तो एरर हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको अपडेट करेंगे फिर डिस्टॉर्शन चेक करेंगे। तो LBG एल्गोरिदम से अगर हम इसको अपडेट करेंगे तो नेक्स्ट इटरेशन में जो डिस्टॉर्शन होगा वो कम हो जाएगा। इसके बाद अगर फिर हम अपडेट करते हैं तो इस तरीके से हमारा जो मिनिमम सपोज कोई एरर है, अगर उससे कम एरर आता है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी अपडेटेड कोडबुक होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी कोडबुक का हम यूज करेंगे अपने इनकोडर डिकोडर में। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज जो हमारा कोडबुक है वो हाइट और वेट का है, तो इनिशियली हम ये सपोज कर लिए हैं कोडबुक, और ये हमारा ट्रेनिंग सेट है हाइट 44 41, इसको हम ABCDEF से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इनिशियली अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट और वेट लेके 40 50 60, मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट होगा इससे। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई हम सिंबल का यूज कर सकते हैं, जैसे कोडबुक में हम 1 2 3 4 का यूज कर लेंगे, और जो ट्रेनिंग सेट है इनपुट वहाँ पे ABCD का यूज कर लेंगे। अगर एक हम एग्जांपल देखें तो 45 और 50, 45 यहाँ है और 50 यहाँ है, इस पॉइंट को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। वैसे ही अगर 44 41 है, 44 41 यहाँ पे इस पॉइंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये ABCDEF को रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ से। फर्स्ट हमको ये करना है, अगर एग्जाम में आता है तो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करते हैं, और हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि ये जो ट्रेनिंग सेट्स हैं, ये जो 4 रीजन्स हैं ग्राफ में, सपोज ये 1 2 3 और 4 ये पॉइंट्स होंगे ग्राफ में, ये पॉइंट्स, और ABCDEF भी जहाँ तहाँ पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा इनपुट किस रीजन के क्लोजेस्ट है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, तो ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने का तरीका वही है, डिस्टॉर्शन हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट का चारों के साथ हम फाइंड करेंगे डिस्टॉर्शन, जो मिनिमम होगा वो रीजन इसके क्लोजेस्ट है। उसी तरह हम इस सेकेंड को लेंगे और चारों के साथ फाइंड करेंगे, जो मिनिमम होगा वो इस रीजन में आएगा। सपोज जो A है वो फर्स्ट रीजन में आ रहा है, तो A इस तरीके से फर्स्ट रीजन में आ जाएगा। तो बट क्या है कि अगर हमें हर इनपुट के लिए चारों को अगर हमें
कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम थोड़ा सा लॉजिकली इसको करेंगे। हम पहले थोड़ा चेक कर लेंगे कि इसके पास क्या है। सपोज 44 है, यहाँ पे 44, ये 45 और 45 इसके ये क्लोजेस्ट है, और 41 50 ये दोनों पहले हमने सेट किया कि इसको हम लेंगे। बट अगर हम वेट देखें तो 41 है, यहाँ पे 50 है, ये तो इससे क्लोज है, बट 117 बहुत दूर है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट है, ए इनपुट है, वो फर्स्ट रीजन में आएगा। बट इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम डिस्टॉर्शन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? हम फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट को, ये हो जाएगा 44 माइनस 45 स्क्वायर प्लस 41 माइनस 50 स्क्वायर। वैसे ही इसी का सेकेंड 44 माइनस 75 स्क्वायर प्लस 41 माइनस 1117 स्क्वायर। इस तरीके से हम थर्ड और फोर्थ इसी का फाइंड कर लेंगे चारों का, और जो इसका मिनिमम होगा ये जो पॉइंट है उसी रीजन में होगा। तो एग्जाम में हमें ये करने की जरूरत नहीं है, सारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली हम यहाँ से देख लेंगे कि हाँ ये किसके पास है। अगर कंफ्यूजन है किसी दो में तो उस दो को हम फाइंड कर लेंगे और उसमें जो मिनिमम आएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज इन दोनों में कंफ्यूजन है कि हमें मतलब कंफर्म नहीं है कि ये सेकंड रीजन में है या थर्ड रीजन में है, कोई देख के ऐसे ही, तो हम इन दोनों को लेके इस तरीके से फाइंड कर लेंगे और जो मिनिमम होगा उसको ले लेंगे। बट अगर ज़्यादा डिफरेंस है तब तो हम ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में हम रीजन फाइंड करेंगे, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही रीजन यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन है, ये हाइट एंड वेट है। फर्स्ट इटरेशन में मैंने रीजन फाइंड कर दिया है। बिल्कुल आप इसी तरह फाइंड करेंगे। सपोज ये 44 41 है, तो ये हमको देख के लग रहा है कि हाँ ये फर्स्ट रीजन में होगा। ये 59 और 119 है, 119 है तो ये इन दोनों के पास है, तो हमारे पास दो हैं कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। बट यहाँ 59 है, तो 59 का क्या है कि 59 इसके पास है, थर्ड वाले के पास है 59, तो इसलिए ये थर्ड में हो जाएगा। उसी तरह हम सेकंड चेक कर लेंगे, जैसे इन दोनों का लेते हैं। यहाँ पे 72 है, तो 72 इसके पास है, इसके पास है 75 और 80 के पास। बस ये 175 और 80 है जो कि इसके बिल्कुल पास है, 117 के काफ़ी दूर है, तो ये फोर्थ रीजन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम लॉजिकली फाइंड कर लेंगे। और अगर जहाँ पे भी कंफ्यूजन लगे तो जो इक्वेशन था उसका यूज करके हम जो मिनिमम होगा वो हमारा रीजन होगा, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड करने के बाद हमें डिस्टॉर्शन फाइंड करना है कि एरर कितना आ रहा है। तो ये जो है वो फर्स्ट रीजन में है, फर्स्ट रीजन में, तो इसका एरर फाइंड करेंगे हम। 44 माइनस 45 बिल्कुल सेम उसी तरह, माइनस 45 स्क्वायर प्लस 41 माइनस 50 स्क्वायर। ये सब में मॉड में है एक्चुअली, जो प्रीवियसली था उसमें भी मॉड था, माइनस है तो इसको एक्चुअली मॉड अगर नहीं भी है तो अगर माइनस के स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 9 का स्क्वायर 82। तो इसका जो डिस्टॉर्शन है फर्स्ट का वो है 82। तो मैंने डिस्टॉर्शन भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है इजी के लिए कि टाइम वेस्ट ना हो। और एक हम कैलकुलेट कर लें या फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं। सपोज हमें इसका फाइंड करना है 72 180 का, हमने फाइंड कर लिया है कि ये फोर्थ रीजन में है। डिस्टॉर्शन फाइंड करना तो क्या होगा, 80 माइनस 72 8 होगा, इसका स्क्वायर कर देना है 64, 180 माइनस 180 फिर 0 ही रहेगा, प्लस 0 64 हो जाएगा। वैसे अगर ये फाइंड करना है तो 80 माइनस 72 8 स्क्वायर 64, 180 माइनस 175 5 स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा 89, 5 और 9 68। इस तरीके से हम डिस्टॉर्शन फाइंड कर लेंगे सबका। और इसके बाद क्या करेंगे, हम डी नॉट फाइंड करेंगे, जो एवरेज डिस्टॉर्शन है वो फाइंड करेंगे। डी नॉट वो होगा इनका सम 722 डिवाइड बाई 6, इनका ये कितने हैं 6 है, तो ये आएगा 120.3। ये फर्स्ट है डिस्टॉर्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो इनिशियल ट्रेनिंग सेट लिए हैं अगर एज इट इज ये लेंगे तो एवरेज डिस्टॉर्शन हमारा 120 आएगा। ठीक,
हम आगे क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, उसके बाद डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अपडेटेड जो कोडबुक होगा वो ज़्यादा बेटर है इस वाले से। तो हम सेकेंड इटरेशन पे चलते हैं। सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे कि हमने ये तो फाइंड कर लिया है कि किस किस रीजन में है। अगर आप चाहें एग्जाम में तो ये फाइंड करने के बाद आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं इसका और इसका प्लॉट फिर से बना सकते हैं। और इसमें रीजन में फर्स्ट वाले में ये आ जाएगा, सेकेंड रीजन में ये दोनों आ जाएंगे, थर्ड में ये अकेला आ जाएगा, फोर्थ में ये आ जाएंगे। इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हर इटरेशन के बाद हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे यहाँ पे अभी। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे कि हम फिर से इसका रीजन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि हमें इसको अपडेट करना है। जो इनिशियल हमने कोडबुक लिया था इसको अपडेट करना है। तो रीजंस क्या है, अगर रीजन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा इनपुट हैं, एक से ज़्यादा ट्रेनिंग सेट हैं, तो उसका हम एवरेज लेके उसको अपडेट कर देंगे। अगर वो सिंगल है तो उसी को अपडेट कर देंगे। जैसे फर्स्ट रीजन में सिर्फ यही एलिमेंट है, फर्स्ट रीजन में और कोई नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको अपडेट कर देंगे 44 एंड 41। ठीक, वैसे ही थर्ड रीजन में सिर्फ ये एलिमेंट है, तो थर्ड को हम अपडेट कर देंगे 59 119। उसके बाद सेकंड में दो हैं ये, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हाइट के लिए हम इसका एवरेज ले लेंगे 62 + 65 डिवाइड बाई 2, 127 डिवाइड बाई 2, 63.5 आएगा। तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे, 63 ले लेंगे, ये हो जाएगा 63। वैसे ही y वैल्यूज जो है वेट है उसको फाइंड कर लेंगे, 140 + 120 डिवाइड बाई 2, 234 डिवाइड बाई 2, 117। तो ये 117 ही रहेगा। फिर यहाँ पे है 72 + 72 डिवाइड बाई 2, तो 72 ही रहेगा। फिर ये 180 प्लस 175 डिवाइड बाई 2, तो मिडिल 177, तो ये हो जाएगा 177। तो ये हमने अपडेट कर दिया है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये 117 था, सेम था वो। इस तरीके से हमने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद जो भी ये डेटा है हम फिर से अपडेट करने के बाद फिर से फाइंड करेंगे कि कौन सा डेटा अब किस रेंज में आ रहा है। वो रेंज फाइंड करके फिर से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से फाइंड करने के लिए कि कौन सा डेटा किस रेंज में आएगा, अब हम सेकेंड इटरेशन में आ गए हैं। तो हम वही करेंगे, फर्स्ट को लेंगे, चेक करेंगे, डिस्टॉर्शन फाइंड करेंगे चारों से, जिसका मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा वो उस रीजन में ये वाला पॉइंट होगा। तो जनरली अब यहाँ पे 44 41 है और ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो पक्का इसी में होगा। तो इस तरीके से फाइंड करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी रीजन चेंज नहीं हो रहा है, सारे पॉइंट्स उसी रीजन में आ रहे हैं, ऑलरेडी जो पहले था उसी रीजन में आ रहे हैं। बट हमें अब सेकेंड इटरेशन में रीजन तो हमने फाइंड कर लिया, हमें डिस्टॉर्शन फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 44 41 है, 44 41 है, 44 - 44 स्क्वायर 0 0, तो ये इसका डिस्टॉर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट है, और ये भी थर्ड वाला भी एलिमेंट सेम है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। इसका फाइंड करते हैं, ये दोनों फाइंड कर लिया। ये सेकेंड रीजन में है, जो सेकेंड टाइम हमने चेक किया है फिर भी ये सेकेंड रीजन में आया है, ये हम सेकेंड टाइम अलग से चेक करेंगे। अगर ये डेटा डिफरेंट होता तो क्या होता कि सेकेंड टाइम हो सकता था कि रीजन दूसरा हो जाए, यहाँ पे सेकेंड वाला थर्ड में चला जाए, थर्ड वाला सेकेंड में आ जाए, इस तरीके से हो सकता है। बट इस एग्जाम्पल में सेम रीजन ही है। तो फिर इसका डिस्टॉर्शन चेक करते हैं, हम लिखेंगे नहीं, जनरली ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। तो 63 - 61 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 117 114 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 10, इसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा 10। फिर हम 65, ये भी सेकेंड रीजन में है, सेकेंड रीजन 63 है 65 है, डिफरेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 120 है 117 है, इसका भी 3 आएगा डिफरेंस, तो 9, 4 और 9 13। फिर ये है 72 180, तो फोर्थ रीजन में है 72, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर
9, ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 72 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हो जाएगा ये 4। तो इसको हम अगर सम करेंगे तो ये आएगा 36। तो इसका जो D1 होगा, यहाँ पे हमने D0 जो फाइंड किया था वो 120.3 आया था, D1 जब फाइंड करेंगे तो 36/6 ये आएगा 6। हम देख रहे हैं कि जो डिस्टॉर्शन था, जो एरर था, वो इतना बड़ा था, 120.3 था, इससे कम होके डायरेक्टली 6 पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोड बुक है वो काफ़ी इफिशियंट है, काफ़ी एरर फ्री है जो पुराना वाला था उससे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड एडिशन हो गया। अब हम थर्ड इटरेशन लेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड रीजन था तो ये तो सेम ही रहेगा, और सेकंड वाले को हम अगर इसको प्लस करके डिवाइड करें तो फिर से सेम ही आएंगे। तो इस एग्जांपल पे सेकंड इटरेशन पे ही हम स्टॉप हो जाएंगे और ये हमारा मिनिमम एरर आएगा। कोई और एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे हम थर्ड इटरेशन फोर्थ इटरेशन पे जाएं और क्वेश्चन में गिवन होगा कि मिनिमम एरर सपोज 7 है, अगर 7 से कम एरर आ जाए तो आपको स्टॉप हो जाना है। सपोज यही क्वेश्चन आया, इसमें दिया है कि मिनिमम एरर 7 है, तो यहाँ पे 6 एरर आ गया, इससे कम एरर आया है तो बेटर है। तो इस तरीके से अब इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है, तो इसके बाद इसका एल्गोरिथम हम देख लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, LBZ एल्गोरिथम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट हमने एग्जाम्पल देख लिया है, तो इसको समझना बहुत ईजी होगा। सबसे पहले क्या लिखा है कि इनिशियलाइज सेट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव वैल्यूज एंड सेट ऑफ ट्रेनिंग वेक्टर्स। ये रिकंस्ट्रक्टिव वैल्यूज क्या है, जो आउटपुट है मीन्स के कोड बुक है, जिसपे भी ये ऊपर वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये वाली, ये क्या है कि हर इटरेशन में अपडेट होने वाली वैल्यूज है। इसमें नहीं लिखा है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कोड बुक है। इनिशियलाइज जो हम कोड बुक किए थे, यहाँ पे 4 लिए थे हाइट वेट, वो है yi i = 1 to m, यहाँ पे m की वैल्यू 4 है उस एग्जाम्पल के हिसाब से। नाउ ट्रेनिंग सेट हमारा 6 ट्रेनिंग सेट था, वो है xn, यहाँ पे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो ये अपडेट नहीं होगा, ये फिक्स रहता है। n = 1 to n, तो यहाँ पे n हमारा 6 था पहले। ये दोनों जो भी इनिशियल कोड बुक था और ट्रेनिंग सेट था, पहले हमने इनिशियलाइज किया था। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेकेंड पॉइंट में हम फाइंड करते हैं कि कौन सा इनपुट किस रीजन में है। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्टॉर्शन फाइंड करते हैं। ये डिस्टॉर्शन एक्चुअली मॉड का स्क्वायर है, जिसका डिस्टॉर्शन बाकी सब जैसे फोर्थ है कोड बुक में, चारों से चेक करते हैं, जिसका मिनिमम है वो इनपुट उस रीजन में होता है। तो यहाँ पे जिसका डिस्टॉर्शन सबसे मिनिमम है, इस आई को छोड़ के बाकी सब, जैसे अगर हम V1 फाइंड कर रहे हैं, तो अगर ये V2, V3 और V4 से अगर कम है तो हम इसको उस रीजन में ले लेंगे। तो जो सेकंड है क्वांटाइजेशन रीजन जो फाइंड कर रहे हैं VI, तो यहाँ पे क्या है कि जो कोड बुक है ये भी अपडेट होता है, तो YI 0 1 2 3 ऐसे अपडेट होगा। वैसे ही जो रीजन है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था उसमें अपडेट नहीं हुआ था, क्योंकि वो एग्जाम्पल ऐसा था, बट एग्जाम्पल अगर डिफरेंट होगा तो जो सेकंड रीजन होगा, सेकंड इटरेशन में जो रीजन्स आएंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रीजन चेंज हो जाएगा। तो सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप क्या है कि हमने जो रीजन फाइंड किया था कि कौन सा इनपुट किस रीजन में है, उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने डिस्टॉर्शन फाइंड किया था। सबका हम स्क्वायर लिए थे। यहाँ पे ये कंप्यूट एवरेज डिस्टॉर्शन है, ये जो सम किए थे हम यहाँ पे डिस्टॉर्शन का, वो सारा सम डिवाइड भी कितने नंबर हैं m, इस तरीके से हम डिस्टॉर्शन निकाले थे। तो यहाँ पे ऊपर k की वैल्यू से है तो डिस्टॉर्शन भी बार बार हमें निकालेंगे। यहाँ पे ये मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि अगर एरर इससे कम होता है तो हम स्टॉप हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसका एरर निकाल लेंगे। जो भी सपोज ये हमारा डिस्टॉर्शन एरर है प्रेजेंट, ये पास्ट का, इस तरीके से अगर डिवाइड करने के बाद अगर जो थ्रेशोल्ड है उससे कम एरर आ रहा है तो हम स्टॉप हो जाएंगे। नहीं तो हमने क्या किया था, रीजन को अपडेट किया था। अब ये जो कोड बुक है उसको हमने अपडेट किया था, उसमें क्या था, फर्स्ट और थर्ड हमारा अपडेट नहीं हुआ था, एज इट इज था। सेकंड 4 अपडेट हुआ था, उसमें हमने क्या किया था कि हाइट का एवरेज लिया था, उसको अपडेट किया था, वेट का एवरेज लेके अपडेट किया था। तो क्या है, हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे k = k+1, फाइंड न्यू रिकंस्ट्रक्शन वैल्यूज जो कि yi है k i = 1 to m सच दैट दैट आर एवरेज वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। जो भी सपोज हमने देखा था कि सेकंड में
सेकंड में 2 वैल्यूज थे वेट और हाइट का, तो इसका एवरेज लिए थे और जो हमारा कोडबुक था उसके वेट को अपडेट कर दिए थे और वैसे ही हाइट लेके उसको अपडेट कर दिए थे। तो इस तरीके से हम इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। वापस हम सेकंड स्टेप में क्या किए थे, रीजन फाइंड करेंगे कि अभी जो एलिमेंट्स हैं ट्रेनिंग वेक्टर्स वो किस रीजन में हैं। हमारे एग्जांपल में रीजन चेंज नहीं हुआ था, बट रीजन चेंज हो सकता है। रीजन चेंज हुआ था लेकिन उसके बाद फिर हमें डिस्टॉर्शन कैलकुलेट किया था। तो फर्स्ट टाइम डिस्टॉर्शन 120.3 आया था और सेकेंड टाइम 6 आया था, तो डिस्टॉर्शन काफ़ी डिक्रीज हुआ था। फिर हम सेकेंड टाइम पे अगर कुछ भी थ्रेशोल्ड दिया रहता तो एरर काफ़ी कम था, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते। कोई और एग्जांपल होता तो फिर से इसको हम अपडेट करेंगे जो भी कोड बुक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप होगा जब एरर किसी मिनिमम एरर से कम आए। तो ये इसका एल्गोरिदम है। थैंक यू फ्रेंड्स।